So हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक गिव अवे है एंड व्हाट वी आर गिविंग अवे इज अ गोट किड खस्सी बकरा है। खस्सी बर्बरी एंड बोर मेल, बर्बरी फीमेल का क्रॉस ब्रीड का बच्चा है। इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। But now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt. एंटरटेनमेंट I'm at Mo Farms और ओसामा भाई के साथ हूँ एंड देन वी हैव भाई मसूद भाई। मसूद भाई ओसामा भाई के मामा है, राइट? जी जी, ठीक है। वेलकम टू FSA एंटरटेनमेंट बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। You got to be a little louder. Yeah, ठीक है। First of all, tell me what's with this onomatopoeia with Mo? इट्स बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग में नाम सोच रहे थे, तो बहुत सारे नाम के थ्रू आए, बट देन इनका नाम मसूद है, मेरा नाम ओसामा है, सो MNO, so it's like it's simple, sweet and simple. It seems catchy to us, probably to the other people also. So Mo, and then Mo का अलग भी मीनिंग हो जाता है. Obviously the buffalo mows. Right? Yeah. So that's why I said the onomatopoeia. Because it's related to farm only, na? Yeah, somewhere or the other, someone can relate to it. मतलब relate कर सकता है. Very so true. Mo is easy. So more organic, more Salah. Football fans है सब लोग, तो you know Mo was like, we found it to be very very catchy. And M for Masood and O for Osama. Yeah, Mohammad Osama, whatever. Mohammad Osama, whatever you मतलब बहुत सारे variables थे. ठीक है, ठीक है। हमारा फार्म exactly कहाँ पर है? It's in Karnala. It's near Panvel, okay, on the Goa road. Karnala has a bird sanctuary, right? Yes. And उसके कितने करीब है आप? उससे 5 मिनट पे रहेंगे हम. Okay. Before we move on to the first goat, जो कि बहुत अच्छा है, पीछे बैठा हुआ है. Could you tell us about yourself, both of you? We'll start with you, Osama. क्या बोलूँ मैं आपको? Related to farming only. Okay, so basically, initially तो मैं पढ़ाई में था. Mama was in Dubai. He used to work in Dubai. He's been there in Dubai for a lot of काफी साल से. You were in Dubai for 30 years, if I'm not wrong, right? Yes. And you recently shifted. Yes, because I wanted to, you know, I was seeing Osama is enjoying himself too much on the farm. Okay. तो मुझे भी थोड़ा ज़िंदगी का मज़ा लेना था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो वापस आ जाते हैं. Okay. So basically पढ़ाई खत्म हो गया. So that was the phase कि भाई अभी करना क्या है लाइफ में. बहुत लोग के फेज में आता है कि भाई पढ़ाई तो कर लिए, कुछ ना कुछ डिग्री मिल गया, बदन करना क्या है. तो दैट वाज अ पीरियड कि मैं बोला कि नहीं, मैं एक साल थोड़ा सोचता हूँ क्या करना है. देन वो टाइम पे मामा अप्रोच मी कि हम ऐसा कर सकते हैं. इट साउंडेड वेरी इंट्रीगिंग, मतलब काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, एंड देन इंटरेस्ट भी उसमें जा रहा था.
So तो वो हिसाब से हमने so ये जो फार्म है बेसिकली दिस इज मोर ऑफ अ रिजॉर्ट राइट? जी इट्स नॉट अ रिसोर्ट बट इट्स फार्म, मतलब It's- फार्म स्टे की तरह है। Farm It's stay not- है, मतलब एकदम okay. प्रॉपर रिसोर्ट की तरह नहीं है। ओके, तो ये पहले था बकरे के? बकरे, हाँ जी, ये तो 10 साल से चल रहा ये है। 10 साल से चल रहा 8-10 साल से चल रहा है। है। ओके, पहले कैंपिंग से स्टार्ट हुआ था एंड देन हमारा रूम से खुद का पर्सनल, तो उसका भी डिमांड आने लगा तो हम वो भी देने लगे। ओके, देन थोड़ा वुडन यूनिट्स एंड ऑल एक बना दिया हमने, तो वो भी हो सके तो हम दिखा देंगे आपको। ठीक है। ओसामा, तो यहाँ पर पलाई के लिए जानवर रखते हैं जी, पलाई पे रखते हैं, और ब्रीडिंग भी करते हैं, अंडरस्टैंड? ब्रीडिंग भी करते हैं। और व्हाट अबाउट ट्रेडिंग? ट्रेडिंग इतना नहीं करते इतना नहीं है, क्योंकि ठीक है। ट्रेडिंग में एक्चुअली द टाइम इट कंज्यूम्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो अगर वो जमेगा आगे चल के हमको तो इंशाल्लाह हम ज़रूर ट्राई करेंगे, ठीक है, बट फिलहाल तो उतना ट्रेडिंग में नहीं ठीक है। है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक फार्म का टूर करा देंगे, बकरे जी, कहाँ जी। पर रखते जी, हैं जी। बताइए, कैपेसिटी कितनी है फार्म की? गोट्स की ना, जी। इट्स अराउंड 150 से लेके 200 तक का और कैपेसिटी है। कितने अंडुल बकरे अकोमोडेट कर सकते हो आप? अंडुल अगर मैं 50 to 60 हो जाएगा, केजेस में around केजेस में 60. है। 60 केजेस। कितने या- खाली है अभी केजेस? अराउंड 15 to 20 एम्प्टी है 15 से 20 खाली है। एंड देन हम लोग कूटा भी लगा रहे हैं, थोड़ा कूटा का एक एरिया हमने खाली किया है, Okay. तो 8 बकरे वहाँ पे भी आ ठीक सकते है। हैं। पलाई का चार्ज कितना है आपका? पलाई का इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2000 रुपीज़, दैट इज़ 40 kg के बिलो का बकरा है तो आपको 2000 देना पड़ेगा। 40 kg प्लस है तो 2500, 65 प्लस है तो 3000 एंड देन 90 प्लस है तो 3500। इतना कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है? नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मतलब हमने कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा हम्म, कि बहुत जगह पे क्या है कि एक फिक्स प्राइस रहता है, हम्म, वो लोग बोलते हैं फिक्स्ड है, वो बाद में फ्लक्चुएट करते रहेंगे, हम्म। बट हमारा ये मेंटालिटी है कि भाई बकरा जब भी छोटा है तो वो खाना भी कम खाएगा, खर्चा भी थोड़ा कम देगा। कोई कोई ज़्यादा खाते हैं हम्म। बट इन द एंड वो इवन आउट हो जाता है। ओके, तो वेट के हिसाब से उनका जैसा इंटेक बढ़ रहा है वैसा वैसा उनका प्राइस बढ़ रहा है। ओके, ओके। तो ये है पलाई का बेसिकली। अगर जी। बहुत से लोग स्कीम्स दे रहे हैं, जी, ठीक है, आप इतने समय से हो, आपने क्या स्कीम दी और अभी क्या देना चाहते हो पलाई को लेके पलाई को लेके? ऐसा कुछ मतलब एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ स्कीम्स नहीं दिया है, बट देन हमारे जो लॉयल कस्टमर्स है जो काफ़ी टाइम से रख रहे हैं 5-5, 10-10 बकरे, तो हम उनको थोड़ा बहुत ऑफ दे देते हैं जैसा भी है, ठीक है। एंड वैसा चलते तो रहता ऐसे कोई एक्सक्लूसिव Exclusive वैसे schemes नहीं है। आज के तारीख में ना दाना का प्राइसेस इतना हाई हो गया है कि ये जो प्राइसेस हमने तकरीबन 1 साल पहले बनाया था, तो ये प्राइसेस आज भी इतना फीजिबल नहीं होता है, तो स्कीम या ऑफर देने का तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, तो ओके। मतलब हम लोग को लगता है कि ये जो प्राइस है बहुत वाजिब है आज के ठीक है। मार्केट के हिसाब से, एंड जनरली मोस्ट पीपल आर हैप्पी टू पे इट। चलिए, प्राइजेस आप कंपेयर करेंगे बाकी सब जगहों से, सो इट्स वेरी मतलब कम्पिटिटिव भी नहीं, काफ़ी अच्छा है। आप Okay. आओ हमारे जगह पे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट वीडियो देख के आप आ जाओ पलाई पर रख दो, डायरेक्ट भेज दो, आप खुद पर्सनली विजिट करो, आपको अच्छा लगे तो ही रखो। चलिए, फिर वैसा ही है। और भी सवाल पूछते रहेंगे। अब बकरे पे आते, बताइए बकरे के बारे में। ये बकरे को थोड़ा यहाँ पे जी। सो ये बकरे का नाम चैंपियन है। चैंपियन नाम ऐसे पड़ा कि हमने एक हमारे इंस्टाग्राम पेज पे रील डाला था जिसमें चैंपियन का एक स्टिकर डाल दिया था, हाँ, सो पीपल स्टार्टेड कॉलिंग अस कि भाई हमको चैंपियन बकरा का प्राइस बताओ एंड ऑल, तो हम लोग तो ऐसे ही डाला नहीं था। वहीं पे बंदा, हाँ यहीं पे बंदा रहता है, कोई बात नहीं। जी, एंड ये बकरा जब भी मेरा फार्म जस्ट स्टार्ट हुआ था, आप यहाँ पे आ जाइए इफ पॉसिबल। जी, तो आई वाज टेलिंग कि जब हमारा फार्म स्टार्ट हुआ था, जब भी शेड कंप्लीट भी नहीं हुआ था बेसिकली द फर्स्ट शेड, तब से ये बकरा हमारे पास है। सो आई शुड सो व्हाट, नो दैट्स फाइन। क्या कह रहे थे आप? या सर सेइंग कि मतलब जब भी गोट फार्म जस्ट स्टार्ट हुआ था, शेड नहीं बना था, ये बकरा तब से हमारे पास है, तो एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी रहता है। ये बहुत अच्छा बकरा है। जितने भी बकरे आपके फार्म में, आई थिंक सबसे बेस्ट यही है। बहुत खूबसूरत ऐसे बकरा है कि भाई आपके पर्सनल बकरे को आप ज़्यादा अटेंशन देते हो, क्योंकि सबसे बड़ा बकरा मुझे यही दिखा। नहीं, अभी ये कैसा है, ये हमारा बहुत टाइम से हमारे पास है, ओके, 1.5 to 2 years, मतलब स्टार्ट हुआ 2 साल से पूरे हमारे दांत पास किया है। हुआ है इसने? नहीं, 6 पे रहेगा, 8 शायद करता होगा। कितना, 90 किलो होगा? 85-90 approximate? 88-89 रहेगा, है ना? 85 to 90 के बीच में। 85 to 90 के बीच में। हाइट कितनी, 39? नो 39 नहीं है, 38 तक 30 होगा। 38 है, और 38, भरा हुआ बकरा है। जी जी, बहुत भरा हुआ है। ये तो ऐसे भराई टाइप्स का बकरा लगता इसको है। हम ब्रीडिंग बहुत के लिए अच्छी यूज कर रहे फ्रेम हैं। का है। खुद अच्छा, का बकरा है तो हम ब्रीडिंग के लिए यूज तो कर रहे हैं। कोटा बकरियां है आपके पास? कोटा बकरी थी जो पलाई पे, जिनका हमारे कस्टमर है, उनका काफी बकरियां थी, तो हम ये तो बकरा ब्रीडिंग use से कर क्या बकरा टूटा है आपका कि नहीं टूटता है? अभी कैसा हमारा खुद का बकरा है ना, तो एक कॉन्सेप्ट रहता है कि हमको बेचना ही है, बेचना ही है, तो हम ब्रीडिंग इतना नहीं करेंगे। ओके, बट खुद का है तो हमको इतना इशू नहीं है भाई, जी जी। कि हम टूट भी गया तो कुछ मसला नहीं है, तो वो हिसाब से। आउटस्टैंडिंग क्वालिटी, द कलर पैच है ना, द एंटायर कलर कॉम्बिनेशन, एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट कोटा गोज दैट आई हैव सीन दिस ईयर।
बहुत अच्छा बना है. इंस्पायर्ड बीइंग अ ब्रीडर इज आउटस्टैंडिंग. अगर लोगों को खरीदना हो, वुड यू चेंज योर माइंड एंड वुड यू कंसीडर सेलिंग इट ऑफ? फिलहाल तो कुछ प्लान्स नहीं है, बट इंशाल्लाह ईद में शायद थोड़ा और मेहनत करके 100 किलो तक गया तो. हाँ, नहीं कोई अभी पसंद कर लिया. वैसे तो बेचना है ही ना, ईद में है वो या अभी? अभी तो मतलब अभी अगर कोई बेच देता है आपको, आप खरीदता है आपसे, अभी हमने तो कैसे प्राइस सोचा नहीं है, बट देन आपके पास कुछ ऑफर दैट्स फाइन. बट तो आप बता दीजिए अगर हमको लगे कि हाँ सही दाम आ रहा है ये चीज़ के सो लिए. बेसिकली ये अवेलेबल है. इसको निकालने ऐसे नहीं कि हमें पकड़ के रखना है. अच्छा दाम लगेगा तो निकाल देंगे. या अच्छा दाम लगेगा तो निकाल देंगे, जी, जी, बिकॉज जी, इतना बिल्कुल. अच्छा बकरा है. जाहिर सी बात है कस्टमर्स आएंगे इसके लिए. बिल्कुल. नाम क्या पता है? चैंपियन. चैंपियन है और अप्रॉक्सीमेटली 88-90 kg से 38 हाइट. सिंग विंग का इंटैक्ट है. 2 कलर की सिंग है मेरे ख्याल से ना, वाइट और ब्लैक. मिडल से वो कहाँ से मिला आपको ये? आसिफ भाई से लिया था मैंने. आसिफ एस्टीडी से? जी अरे जब वाह. फार्म चालू हुआ था तो उनसे मैंने 3-4 बकरियां बहुत अच्छा बकरा जी, दिया बकरा आसिफ भाई था. ने. माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा दिया और बहुत अच्छा बना है. जब आया था कितने किलो पे था? 30 kg पे था. तो बहुत अच्छा बना है. व्हाट डू यू जी, फीड जी. देम? अभी नॉर्मल, अभी हमारा स्टार्टिंग में तो मैं आसिफ भाई का ही डाइट यूज कर रहा था एक्चुअली. आसिफ भाई तो बटर चिकन बहुत खाते हैं मैं सुना. नहीं अभी कैसा तो है ना, ढाबा गोश्त खाते हैं? ओवर द 2 years ना ये उनके बकरे का. अच्छा. नहीं कैसा है, हमको ना हमारे 2 साल में हमारा भी फीड एक सेट करना था, तो हम लोग सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए. सबका ट्राई कर लिए है, सब में रिजल्ट्स भी है, बट देन इन दी हम बेसिक पे आ गए भाई. गेहूँ, मक्का, जौ, मिनरल मिक्सचर. द सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी अंडरस्टूड. सप्लीमेंट्स देना ज़रूरी है, प्रोटॉन, कैल्शियम, एंड देन ग्रोथ के लिए कुछ और सप्लीमेंट्स. सो कोई यहाँ पे बकरे रखता है तो एवरेज मंथली वेट गेन कितना है आपके बकरों का? 3 से 5 किलो है रहा है और 3 से 5 अंडुल बकरे का? जी. यू कंसीडर इट टू बी गुड? आर यू सेटिस्फाइड? इट इज वेरी गुड. 3 to 5 It's kg actually very good for It an is Andul very goat. good. It is very ऐसा है good. ना फाद भाई, कोई महीने में बकरा 7 किलो भी बढ़ता है, उसके अगले 2 महीने में शायद बढ़े भी ना, फिर वापस से 5 किलो भी बढ़ेगा, बट देन एवरेज आउट हो गया ना 3 से 5 के बीच में कहीं ना कहीं आता है. ठीक है. एंड देन ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका ब्रीड कौन सा है, आप कौन सा बकरा रख रहे हो. Okay. अगर आप बैंटम ला के रख दोगे, आप बोलोगे भाई 100 करके दो, 80 करके दो, इट इज़ नॉट Not पॉसिबल. possible. ठीक है. तो उसमें बनने का वो क्षमता, मतलब उसमें जगह होनी चाहिए. उठाओगे इसको थोड़ा? ठीक. जगह होएगी, बकरा अच्छा क्वालिटी में रहेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर हम पूरा मेहनत करेंगे. ऐसा नहीं है कि हर बकरे बने हैं, ऑब्वियस है. अभी हमारे यहाँ पे भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सब बकरे बने. कोई बकरे नहीं बन पाते भाई, कितना भी मेहनत कर लो. शायद हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम होएगा तो 1-2 बकरे छूट जाते हैं या जैसा भी. सो या कोई नहीं बनते हैं, कोई. अरे सो कुछ बकरे ऐसे भी है कि जो नहीं बन रहे आपके पास? नहीं मतलब मैक्सिमम ग्रोथ पकड़ ही रहे हैं, और कुछ ना सबका ग्रोथ मतलब कुछ ना कुछ यानी हो जाता आपके है. एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक आध बकरे नहीं बने होंगे, जी, लेकिन जी, सब जी, ऊपर जी. ही आ रहा है. जी. ओके. जैसा मैंने आपको बोला, ब्रीड स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है. अच्छी नस्ल की लेके अच्छी आएंगे तो नस्ल के लाएंगे डेफिनेटली. तो बढ़ेंगे. हम तो क्या पलाई पे ले लेंगे. हमारा काम है खाना खिलाना सबको, वही हम खाना देंगे, कुछ स्पेशल ऐसा अलग नहीं है. बट ब्रीड अच्छा रहेगा, हमारा मेहनत रहेगा इंशाल्लाह. तो हमको ये हमारा खूटे पे मेहनत का- बनाए क्या केज में बना हुआ केज में है? बना है, केज में बना, केज बहुत में अच्छा बना है. है. लोग जब आते हैं पलाई पे रखने, दे इंसिस्ट ऑन पुटिंग इन केज के भाई खूटे पे पालना. नहीं, लोग हमारा तो स्टार्टिंग से ही हम केज में ही पाल रहे हैं. केज में ही पाल रहे हो. हमारा कूटा हम आपको दिखा देंगे, हम बाहर लगा के रखे हैं कि हम लोग का रूटीन है. ओके. इस केज के हम लोग रोज 7-8 बकरे निकाले, उनको कूटे पे घुमाए ताकि वो सिंग अपना कूटे पे घसे, थोड़ा वॉकिंग हो जाए, धूप मिल जाए तो बेटर रहेगा. ठीक है, चलिए फेयर इनफ. दूसरा बकरा लेके आते हैं. बहुत बात होगी एक बकरे पे. वी हैव 7-8 मोर गोट्स टू शो. चलिए दूसरा बकरा लेके आते हैं. ओसामा भाई, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गोट. नाम क्या है बकरे का? टाइसन. टाइसन. ये वही बकरा है जो स्लो मोशन में मेंढू जैसा मारता है, यानी बस नीचे से मार रहा है, अटैक उसके करता लिए. है. हाँ, जब नहीं मार ही रहा है. जस्ट कम्स फोर्सफुली टुवर्ड्स यू. ही जस्ट चार्जेस टुवर्ड्स यू. ऐसा है. अभी इतना एक्सट्रीम एग्रेसिव नहीं है, बट देन वीडियो के टाइम पे थोड़ा उसको भी थोड़ा शो ऑफ करने का था भाई. हाँ, बकरे उसको थोड़ा यहाँ पे रखोगे, बिकॉज आई कैन ओनली सी द दुम. को. उसको घुमा दे, जी फेस दिखा दे. हाँ.
जी बताइए, इसकी डिटेल्स बताइए। सो ये बकरा अराउंड 85 kg पे है, 6 दांत कर रहा है जी। और इसका हाइट 39-40 है। 39-40 हाइट जी, है, जी। कोटा बकरा है जी। और 89 kgs कितना? 85-89 kgs जी 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 85 से 90 के बीच में। बहुत अग्रेसिव है, बहुत अग्रेसिव बकरा है और खूबसूरत है। जितने भी बकरे अभी निकाले हम अच्छे कलर के आ रहे हैं। जी जी ये भी आपका खुद ही का होगा, अंडरस्टैंड? ये भी खुद ही का है। ये भी खुद ही का है। ये भी इफ यू गेट द फेयर प्राइस या, तो आप definitely, निकाल दोगे। definitely, डू यू हैव अ प्राइस इन माइंड कि ये स्टिल? नहीं, आप फोन कर दीजिए। फोन कर दीजिए। फिक्स नहीं है, ठीक है। कि इनिशियली सोचा नहीं था बेचना है, बट देन या इट्स इफ यू गेट अ फेयर डील देन इसको पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। रोक लेना भाई, लकड़ी तोड़ देना। लकड़ी तोड़ देगा वो। जी अच्छा, ये बताइए उसामा भाई, जी जी फार्म्स जो है देखिए एक स्ट्रेच आता है, हालांकि यहाँ पर आने उतना ही समय लगता है जितना मुझे पटगा जाने में लगा। शायद कम लगा मुझे आज यहाँ पे आने को, जी जी जितना मुझे पटगा भिवंडी जाने में लगता है। और लोगों को यहाँ पर क्यों रखना चाहिए? क्योंकि एक वहाँ पर एक फार्मिंग जोन बन गया है, गुड फार्मिंग जोन। बराबर। Why should somebody keep their goats here on Palai? I mean, leave apart the tourism thing. Yeah. Not everybody will come to stay in your no, resort, it's true, right? it's true. What Why you're should saying is somebody? true. Why should somebody keep here? कैसा है ना फाद भाई, आप जब भी कस्टमर खुद आए और ये जगह पे टूरिज्म छोड़ दो आप गोट, सिर्फ हमारा गोट का जैसा काम होता है ना, आप आओ, हम कस्टमर कभी भी आता है हम रिसीव करते हैं, मैं नहीं रहूँ मेरा बंदा हैंडल कर लेता है। आप आओ, आप देखो हम पलाई कैसा कर रहे हैं, हमारा आपसे कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, हमारा ट्रांसपेरेंसी आपके साथ कैसा है और आपको रिजल्ट कैसा मिल रहा है। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप वो सब चीज़ों पे हमको टेस्ट करके देख सकते हो। आप मतलब खुद आओ, हमसे बात करो। Okay. अभी सब जगह तो पलाई कर रहे हैं, आपका बात सही है, जी, लेकिन जी। हमारा जो सिस्टम है काम का वो काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ है, एकदम प्रिस्टीन जोन है, ग्रीन जोन है। Okay. तो नेचर वाइज हेल्थ और ये सब चीज़ें बकरों के लिए ज़्यादा अच्छा बट है। बकरे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे बने। हाँ, इनफैक्ट बन- सबसे बड़े बड़े अंडुलिया खस्सी बकरे वहीं से आते हाँ, हैं। क्योंकि पडगा में भी लोग रख रहे हैं काफ़ी टाइम से। जी। अभी इंशाल्लाह यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी बड़े बकरे आएंगे तो यहाँ पे भी होगा। इज दिस प्लेस चीपर देन पटगा? अगर किसी को यहाँ पे कोई रेंट पे फार्म खोलना पड़े तो इज दिस नो चीपर? क्या पटगा इज चीपर? पटगा माइट बी चीपर, जितना मेरे को मालूम है। पता नहीं, मैं इतना नॉलेज नहीं है रेंट आउट के लिए। दिस इज योर ओन प्लेस, राइट? ये मेरा खुद का है, बट जो रेंट कर रहे हैं उनका क्या रेट है मेरे को मालूम नहीं है। ऑल्सो जैसा आपने बोला कि वहाँ के बकरे बढ़ रहे हैं, यहाँ का जो हवा है इट इज़ बेटर, क्योंकि ग्रीन ज़्यादा है तो नेचर के अराउंड ही बकरे बन रहे हैं, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है एक्चुअल में। सो वो आपको बकरे तो बढ़ेंगे, बट देन लॉन्ग टर्म बकरे का जो लाइफ होता है, 4-6 रात बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसमें मतलब उतना नहीं एडवर्स नहीं है। जैसा आप अगर फुल पॉल्यूटेड एरिया में रहोगे, आपको एक दिन में फ़र्क नहीं समझेगा, 2-3 महीने समझेगा, बट 1-2 साल में समझ में आएगा। स्लो इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे भी वैसा है कि इनका जो हेल्थ का है वो मतलब थोड़ा इन्वायरमेंट बेटर है, बाकी खाना पीना तो वहाँ पे भी वो अच्छा बढ़ा रहे, हम भी अच्छा बढ़ा रहे। जैसा कस्टमर का नीड होएगा वो हिसाब से ही रखेगा। मैं कितना भी कन्विंस करूँ उनको, जगह जब तक अच्छा नहीं लगेगा तो मैं उनको पकड़ के ला नहीं पाऊंगा। तो आए, देखिए, हमसे बात करें, अच्छा लगे तो जरूर आइए देखिए। सी एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर्स। आप पटगा में दो या यहाँ पर दो, जब तक कि आप रिजल्ट नहीं दोगे जी 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 तब तक के कोई आएगा नहीं यहाँ पर। आपको आप हमारे पास भी रखो, आप हर जगह रखो। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ हमारा फार्म बेस्ट है, इट इज़ वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट। सो आपको जो जगह अच्छा लगे आप वहाँ पे रखो, आपका शौक बनाए रखो। ओके ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आप दूसरा बकरा लेके आइए। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपके स्टाफ का? इनका नाम ताजुद्दीन है। ताजुद्दीन भाई, थैंक यू सो मच। एक और बकरा लाइए आप। सो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक गिव अवे है, एंड व्हाट वी आर गिविंग अवे इज अ गोट किड खस्सी बकरा है। खस्सी बर्बरी एंड बोर मेल, बर्बरी फीमेल का क्रॉस ब्रीड का बच्चा है। तो ये सामने सो ये वाला बकरा जो है मक्खी चीना कलर का, बोर और बर्बरी का क्रॉस है, क्रॉस ब्रीड है। खस्सी कर दिया है। खस्सी कर दिया कितने महीने का है? 5-6 महीने का है। 5-6 महीने का है। 7 महीना, मतलब खुद का उतना वो नहीं था। ठीक है, अराउंड वही पीरियड का है। ठीक है। सो ये बकरा अगर किसी को फ्री में चाहिए, जी गिव अवे प्राइस है हमारा, जी, तो क्या करना पड़ेगा लोगों को?
आपको ये वीडियो पे कमेंट करना है पहले तो, एंड देन हमारा इंस्टाग्राम जो हैंडल है मोफार्म करनाला, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको फॉलो कर दीजिए। हमारे पेज पे भी हम इसका फोटो डाल देंगे, आप उस पर भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और मेरे पेज पे भी डालूंगा FSC एंटरटेनमेंट। जी जी। देयर इज अ फेक आईडी कॉल्ड FSC एंटरटेनमेंट स्टेटस, उस पर जाके मत ढूंढिए, FSA एंटरटेनमेंट विदाउट अ स्पेस। ठीक है, मेरी आईडी है, आप उस पर ये जो बकरे का फ़ोटो रहेगा उसके नीचे कमेंट कीजिए। एक बात बता दें कि भाई आपको 18 साल के ऊपर रहना ज़रूरी है। जी जी। और आपको बम्बई में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, है, आपको खुद आके लेना पड़ेगा। खुद आके लेना पड़ेगा। हम ट्रांसपोर्ट बहुत से लोग हैं भाई कमेंट कर देंगे और बाद में पता चला बॉम्बे के है ही नहीं। बराबर। तो हमें आपका फ़ोटो आइडेंटिटी चाहिए। जी। ठीक है, हम वेरीफाई करेंगे आपका फोटो आइडेंटिटी लगेगा। बच्चा लेके गया, संभाल पाया नहीं पाया। हाँ। बकरा भी जानी है भाई अपनी। ठीक है, आपको अपना फोटो आइडेंटिटी देना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ विनर यू हैव टू बी अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज, और आपको बॉम्बे का निवासी रहना पड़ेगा। ठीक है, बॉम्बे और ग्रेटर मुंबई का नियर बाय बॉम्बे। आप यहाँ से लेके आके खुद जा सकते हो। ठीक है, लेकिन आके लेके जाओ खुद। जी जी। ठीक है, क्या करना है, यूट्यूब में ये वीडियो जो है इस पे कमेंट करना है कि आपको ये बकरा हमें क्यों देना चाहिए। बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे जाना चाहिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मोफार्म्स पनवेल एंड FSC एंटरटेनमेंट, और वहाँ पर भी ये बकरे की फ़ोटो के नीचे कमेंट कीजिए कि ये बकरा आपको क्यों देना चाहिए। आप मेहरबानी करके बॉम्बे के बाहर वाले लोग प्लीज़ कमेंट ना कीजिए, है ना। मतलब कमेंट करो वीडियो पे, कमेंट करो, लेकिन आप अपना अगर बॉम्बे वाले हैं तो लिख दीजिए बॉम्बे में आप कहाँ से हो। नहीं, कमेंट करो पर बकरे के लिए मत कमेंट करो, कुछ और चीज़। कुछ और कैसा लगा आपको, फार्म कैसा लगा, फार्म ज़्यादातर कमेंट आती है फर्स्ट। भाई फर्स्ट से मुझे क्या लेना देना। आई अप्रिशिएट यू कमिंग एंड आपका लाइक चाहिए फात भाई। हाँ, लाइक करके रिप्लाई कर दो, लाइक करके। नहीं अच्छी बात है, लेकिन क्या है कोई भी फार्मर को और यूट्यूबर के लिए फर्स्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई वीडियो कैसी लगी, वीडियो में इम्प्रूवमेंट क्या है, फार्म पे क्या इम्प्रूवमेंट है। थोड़ा कंस्ट्रक्टिव कमेंट होगा तो मज़ा आती है पढ़ने। फर्स्ट सेकंड थर्ड में मज़ा, वी अप्रिशिएट दैट एवरी कमेंट इज वैल्यूएबल। फार्म पे आके भी गए हैं, वो भी शायद वीडियो देखे रहेंगे, आपको कुछ हमारे लिए फीडबैक रहेगा तो यहाँ पे आज नहीं है, कुछ रहेगा तो कुछ इशू नहीं है, आप हमको दीजिए, हम उसको पॉजिटिव वे में लेंगे। एंड विल ऑब्वियसली हमारा वही मोटिव है कि ओवरऑल हम लोग को बेटर होना ही हर चीज़ में। ओके तो आप जो भी बोलेंगे विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। जिस किसी को भी चाहिए कमेंट जरूर कीजिए। एंड दिस इज मोफार्म्स पनवेल की तरफ से गिव अवे करना। ठीक है, विनर कब अनाउंस होगा? अराउंड 2 वीक्स टाइम में हम सारी वीडियो जब डल जाएगी उसके 1-2 हफ्ते में हम अनाउंस कर देंगे कम्युनिटी पेज में। जी डाल देंगे कि कब विनर अनाउंस होने वाला है। ठीक है, मेक श्योर कमेंट कीजिए, कमेंट में आपका नाम लिखिए, आपकी उम्र लिखिए और कहाँ से वो ज़रूर लिखिए। जी ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए उसामा भाई, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गोट। कौन सी नस्ल का है ये? जी ये मालवा है, ये बकरा हमारा नहीं, हमारा पलाई पे है। अच्छा, ये पलाई पे है। जी जी। चलो ये भी अच्छा बना है। जी जी है, माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा बकरा, काफ़ी फरी है। हम श्योर मालवा तो फरी रहता है, बट डोंट यू थिंक थोड़ा क्रॉस में लग रहा है? हो सकता है ना? अभी हम तो बता नहीं सकते कौन सा क्रॉस है क्या है, लेकिन जो भी है अच्छी नस्ल से होगा। अगर मालवा प्योर है तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत प्यारा बकरा है भाई। बच्चा ही है ना ये? बच्चा 4 दांत है। 4 दांत पे है। कितना किलो हुआ ये? 75 के अराउंड है, 70 और 75। इसकी प्रोग्रेस क्या रही है अपने फार्म पे? कितने किलो बढ़ा है एवरेज? प्रोग्रेस एक्चुअली मुझे चेक करना पड़ेगा शीट में, बट देन 4-5 किलो। अभी ये जो भाई है ना, इनके ये जो भाई के बकरे हैं उनके 4-5 बकरे मेरे पास है। ओके। इनके सब बकरे जो है ना अराउंड 4-5 केजीज बढ़े। अभी सब कस्टमर के उतने नहीं बढ़ते, बट इनके कॉन्स्टेंटली उतना उनको रिजल्ट मिला है। ठीक है, बकरों में। ओसामा भाई, 2-3 महीनों में कुछ फार्म्स वाले हैं, मैं गया हूँ। जी जी। इवन दो दे हैव 700-800 गोट्स, राइट, दे नो किसका बकरा है जी, कितने किलो पे आया था जी, कितना किलो मंथली बढ़ा है जी। एंड यू बीइंग अ फार्मर, जी, you have lesser goats, still you said मेरे को पेपर देखना पड़ेगा, so does this mean your interest in farming is less? No, मैं इसलिए आपको बोला कि
इसका जो ग्रोथ है ना, कोई मेरा 7 किलो बढ़ा है, कोई मेरा 5 किलो बढ़ा है, कोई मेरा 3 किलो बढ़ा है। ओके तो व्हेन यू सेट प्रोग्रेस, तो मैं मंथली आपको वैसा देख के बता सकता हूँ कि मंथली कितना बढ़ा है। ओके, तो आने के बाद कितना बढ़ गया टोटल? अराउंड 15 केजीज बढ़ गया। 15 किलो बढ़ा है। कितना महीना हो गया इसको? अराउंड 3 मंथ्स हो गया। 3 मंथ्स हो गया, व्हिच इज गुड। 5 केजीज ऑन एन एवरेज बढ़ा है। इनके 5 बकरे आए मेरे पास, तो इनके सब बकरों का ग्रोथ वैसा ही है। इनिशियली सेट होने में 10-15, इनके सब बकरे बहुत जल्दी सेट हो गए। आपका लास्ट ईयर कितने थे बकरे यहाँ पे पलाई पे? पलाई पे लास्ट ईयर हमारे पास अराउंड 20-25 बकरे थे फीमेल्स। और अभी कितने हैं? अभी अराउंड 35-40 है। 35-40। सो व्हाई इज इट दैट यू हैव बीन ऑन यूट्यूब जी फॉर ओवर अ ईयर नाउ, जी है ना? सो व्हाई इज इट दैट यू हैवंट मेड एन इम्पैक्ट? हमारे पास पलाई पे अगर आ जाते तो 100 आने चाहिए थी। नहीं फाद भाई, कैसा है, हमारे पास इनिशियली जब भी हमने यूट्यूब पे प्रमोट किया था तो पलाई के लिए उतना स्पेस नहीं था हमारे पास। हमारे पास हमारे पर्सनल गोट्स थे, ईद के लिए कुछ बकरे थे, हमारी फीमेल्स थी, हमारा शेड छोटा था। हमने शेड अभी एक्सपैंड किया है जी। तो उसके बाद भी हमारे पास बिना यूट्यूब के जो वर्ड ऑफ माउथ है उनके ही बकरे आए हैं, और वीडियो बना के भी काफ़ी टाइम हो गया है। ओके, तो जब स्पेस बना है, बेसिकली मैं उसके लिए अभी बोल रहा हूँ कि जो स्पेस बना है उसके लिए हमको खाली पड़ा है। ओके, तो इंशाल्लाह वो भी फुल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 100 बकरे का, अभी भी 100 बकरे का जगह नहीं है भाई मेरे पास। अभी भी मैक्सिमम में गोट्स डाल सकता हूँ, 60-70 गोट्स कर सकता हूँ। ओसामा भाई, इफ इट वाज नॉट फॉर यूट्यूब और सोशल मीडिया, जी आप कैसे प्रमोट करोगे अपने फार्म को और पलाई को? थ्रू इंस्टाग्राम। नो, इफ इट वाज नॉट फॉर सोशल मीडिया, हाउ वुड यू प्रमोट? और जो मेरे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, काफ़ी मेरे कस्टमर्स जो है ना, वही एक्चुअली जब स्टार्ट हुआ ना, मैंने पलाई प्रमोट भी नहीं किया था। जैसे ये भाई मैं बोला हूँ ना, ये सबसे पहले कस्टमर है। जब भी मैं पलाई चालू भी नहीं किया था, पिछले साल जब भी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 2020 में मार्च में, उनके बकरे बॉम्बे में लॉकडाउन में वो देख नहीं पा रहे थे, खुद पाल रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे भेज दिया पलाई पे। तो वो मेरे को अभी तक 2 साल हो गया है, उनके वो सब बकरे चले गए, वापस आ रहे हैं। दैट इज वर्ड ऑफ माउथ। या वो खुद किसी और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो नए फार्मर्स जो है, जी who haven't established their farm yet, राइट, बहुत से लोग हैं बहुत रिमोट एरिया में है, lot of people don't know how to operate social media, जी lot of people are not comfortable or they cannot afford inviting a YouTuber because हम भी अपने पैसे से तो नहीं जा सकते हर जगह पे, right? So उनके लिए what should be the best mode of publicity for a new farmer? Yeah. तो पहले बात तो अगर आप गोट फार्मिंग में हैं तो आपको आपके रिश्तेदार फ्रेंड्स वगैरह होगा तो आपको उनके पास प्रमोट करना पड़ेगा। So start with your inner circle. हाँ, इनर सर्कल से ही स्टार्ट करके धीरे धीरे आपका सर्कल बढ़ेगा। आपके पास 2-4 बकरे आएंगे, उनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको और रेफरेंसेस मिलेंगे और ऑटोमेटिकली बढ़ते रहेगा। Okay. तो सोशल मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट, उससे थोड़ा बहुत आपको ग्रोथ अभी जल्दी मिल रहा है, लेकिन उसके बिगर भी आपका अगर रिजल्ट अच्छा है और लोग आपके आके देखेंगे और या जो भी है तो आपको रिस्पॉन्स मिल ही जाएगा। सो कन्विंस, आप ये कह रहे हो कि आपका जो इनर सर्कल है, पड़ोसी हो है और रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, उनको कन्विंस करें कि बकरे दे अगर इंटरेस्टेड है तो पलाई पे, और अगर बकरे बना के दो उनको तो नेचुरली वर्ड ऑफ माउथ चला जाएगा। दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट, है ना? ऑटोमेटिकली मतलब कैसा है ना, आपका काम आपकी पहचान बना देगा फाद भाई। आप है ना बस वो लाइन में थोड़ा घुस जाओ, थोड़ा मेहनत करो, थोड़े भी बकरे पलाई पे आ गए ना। ऐसे में बोला, मैंने कुछ प्रमोशन नहीं किया था, 4 बकरे सामने से आ गए थे, मेरे भाई के ही थ्रू आ गए, कज़न के, बट आ गए थे। उनके थ्रू में वो काफ़ी सारे लीड्स मिल गए क्योंकि उनको रिजल्ट अच्छा मिला। उनको अच्छा नहीं मिलेगा तो किसी और को रिफर नहीं करेंगे। देखिए, वो चेन एक्चुअली बहुत बड़ा है। मैं बताऊं, मैं जब जेडी गोट फार्म पे गया था पहले, सबसे पहले लॉट ऑफ पीपल सेइंग भाई एफएसए पे आने के बाद बहुत सारे बकरे आगे पलाई पे। लेट मी टेल देम, जब मैं इमरान भाई के पास गया था फर्स्ट टाइम 2018 में मार्च में, देयर वर अराउंड 400 गोट्स। ही वाज नोवेयर ऑन यूट्यूब बिफोर। ओके, नहीं मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ। So this technique worked. No, absolutely. Your technique worked for them. Because एक आप बकरे बना के दो, now what is happening is people are relying too much on social media. बहुत फाद भाई, कैसा है ना, आप कितना भी मार्केटिंग कर लो, आप बहुत हजारों खर्चा कर लो, पर अगर आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो या लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है ना, वो मार्केटिंग का कुछ मतलब ही नहीं है। क्योंकि इन दी एंड आपका 2 साल में बिजनेस होएगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 5-10 ईयर्स ना सबको मालूम पड़ जाएगा, नहीं भाई बराबर काम नहीं कर पा रहे हो, कोई लाएगा नहीं। आप कुछ भी कितना भी खर्चा कर लो, कुछ मतलब नहीं है। प्रोडक्ट ही नहीं है आपके पास, मार्केटिंग विल नॉट वर्क। आपके पास प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छा काम करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका ऊपर वाला तो हमारे पास है ही मदद करने के लिए। आप अच्छा काम करो, ईमानदारी से काम करो, ऑटोमेटिकली आप सही जगह पे चल रहे हो। प्लस आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही रिजल्ट दे रहे हो, कस्टमर आपसे खुश है, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, थोड़ा कम भी हो रहा है बट वो बकरा देख के खुश है, तो उसमें कुछ वो नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली आपका करते रहोगे। फेयर इनफ। चलिए, ये था, नाम क्या है इसका वैसे?
इसका है नाम नूरा। नूरा नाम है। और क्या नाम है इनके ओनर का? इनके ओनर का नाम है सुफियान। एक्चुअली वो एक पार्टनर है। कहाँ पे रहते हैं? बॉम्बे। बॉम्बे। आई एम सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये अकेले एक जन का बकरा नहीं है। अच्छा। इनके जो भी 4-5 बकरे हैं वो सब पार्टनरशिप में है। ओके। मतलब कोई सोल बकरा है तो वो तो मैं एक ही जन से बात करता हूँ, बट देन सब बकरे उनके मिले हुए हैं। तो ये उन्होंने कहा कौन सी नस्ल का है? मालवा। मालवा। उन्होंने तो हमको मालवा कहा ठीक है, मालवा जो भी है, मुझे ब्रीड के बारे में पता नहीं, शायद मालवा प्योर भी होगा। जी जी। बट जो भी है बहुत फरी एंड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। ठीक है, अगर बेचना है तो गेट इन, पता है ही वांट्स टू सेल, राइट? ये वाला सेल उनको नहीं करना है जितना मेरा बात हुआ है, बट देन स्टिल आपको इंटरेस्ट फिर भी इनको कॉल कीजिए, ही विल चेक विद देम। ऑल्सो फहद भाई, अगर मैं कॉल कभी ना उठाऊँ तो व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि कॉल हमेशा रिसीव नहीं हो पाता है, कभी नेटवर्क नहीं रहता है। व्हाट्सअप में कैसे थोड़ा लेट रिप्लाई हो जाएगा, बट देन रिप्लाई हो जाएगा। ओके, फेयर इनफ। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कोट। गोट ओसामा भाई, वेरी ब्यूटीफुल बट वेरी एग्रेसिव कोटा गोट। वेरी एग्रेसिव। नाम क्या है इसका? घोस्ट। या पलाई पे? ये खुद का है। अच्छा, ये भी खुद का है जी। माशाल्लाह। ये अभी कैसा है, पलाई में सब बकरे सब बोलते नहीं कि शो करो करके, तो वो हिसाब से हम हमारे बकरे जो है वो दिखा रहे हैं। ओके, क्या डिटेल्स है इसकी? ये अराउंड 55 kg पे है। ओके। 4 दांत पे लास्ट था, शायद 6 कर रहा होगा। ये जब भर के आएगा ना तो सामने का सीना बहुत अच्छा बनेगा। तो बहुत 50 किलो जो ऊपर हमने लिया था, लेकिन वजन नहीं पड़ रहा है यार। ये एक बकरा है जो हमारे यहाँ पे खुद का बकरा है। हाँ। तो इसको हम एक्चुअली अलग अलग ट्राई कर रहे हैं। हमने इसको अलग से भी बांधा, अलग जगह पे हमने इसको सेट किया, बकरों के बीच में नहीं, अलग से एक सेपरेट की, वहाँ पे वो सिर्फ खाने पे ध्यान रहे, वहाँ पे ये भी सेट हो गया। फिर तभी उसको दूसरी जगह चेंज किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बराबर सेट हो गया है, वेट गेन चालू कर दिया है। ओके, अभी 55 किलो ही है ना फिलहाल? 55 किलो है। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी तक के, कितना जाएगा ये? ईद तक के अभी देखते हैं इंशाल्लाह, अभी जैसा भी क्या। ओके। अच्छा, ये बताइए ओसामा भाई, फार्म शुरू होने, when you started a farm, what are the challenges that you face? और नए फार्मर जो फार्म्स खोलते हैं जी, उनको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो कि आपको भी करना पड़ा? जी, पहले तो देखो, आपका जो स्ट्रैटेजी है फार्म खोलने के पीछे, आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आप, जैसा मैं बोल रहा हूँ, पलाई कर रहा हूँ, मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ, आप क्या लाइन में घुसना चाहते हो। ओके। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट है आपका। ब्रीडिंग करना है या पलाई करना है या दोनों करना है। अभी जब भी ब्रीडिंग करना है तो कैसा होता है उसमें कि आपको ब्रीडिंग लोग सुन के बहुत ग्लैमरस लगता है, बट ब्रीडिंग में कैसा है, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। राइट। यू हैव टू पुट इन, यू नीड टू हैव अ वर्किंग कैपिटल एवरी मंथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। यू नीड टू हैव पेशेंस ऑल्सो फॉर इट। अभी उसमें कैसा है, आपका साइकिल आप सीखने के लिए, जो न्यू है ना, सीखने के लिए टाइम जाता है। अभी ऐसा मेरे को भी 2 साल हो गया है, मैं भी सीख ही रहा था। मैं लो ब्रीड के फीमेल से सीख रहा था, तो अभी जाके थोड़ा हमारा साइकिल प्रॉपर हुआ है, सब समझ में आया है, मोर्टालिटी क्या होता है, कैसा बचाना चाहिए, क्या मेडिसिन होना चाहिए, डिलीवरी का क्या कॉम्प्लिकेशंस है, फीमेल में दूध का क्या मसला होता है, वो सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके समझ में आता है। आप थियरी यूट्यूब पे कितना भी देख लो, बट प्रैक्टिकल होने के बाद ही आपको नॉलेज मिलता है। पहले तो वो है। तो फीमेल में आप क्या है कि आपका जो रनिंग कॉस्ट है ना, आप ये सोच के चलो कि 2-3 साल आपको, मेरे हिसाब से पैसा आपको नहीं निकलेगा। ओके। आप लेके चलो, आपको सिर्फ डालना है। ओके। और उसके बाद आपका प्रॉपर सेट हो गया तो ही, ब्रीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपका, तो ब्रीड प्रॉपर आपको सेलेक्ट करना है। सो बेसिकली आपको पता करना है कि आपको क्या करना है, ब्रीडिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, या जैसा भी आप पलाई करना है। जैसे मैं आपको बोला ट्रेडिंग में मैं इतना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। अगर आप उतना टाइम दे पा रहे हो ठीक है, कंटिन्यूसली, आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े? चैलेंजेस मतलब अभी इनिशियली कैसा प्रैक्टिकल नॉलेज तो कुछ था नहीं, शौक था, शौक में हमने शुरू किया। हमको इनिशियली क्या है, लर्निंग स्टेज रहता है, स्टार्ट ग्रोथ स्टेज रहता है, लर्निंग स्टेज रहता है, मेडिकेशन का स्टेज रहता है। हमको सीखना पड़ता है कौन सा क्या मेडिकेशन है, यूट्यूब के थ्रू तो वही सीखता ही है। जैसे मैं तो बेसिकली मेडिकल चैलेंजेस, आपको पता नहीं था कि कौन सी दवा कब देनी है? जी, मतलब नहीं मालूम रहता है। तो वेटरनरी डॉक्टर क्यों नहीं था आपके पास? इनिशियली कैसा है कि हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा दूर का एरिया है। अभी डॉक्टर कैसा है, आता है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी है यहाँ पे, वो आते हैं, वो डेली नहीं आते हैं, हफ्ते में एक बार आएंगे, उनको सेट कर सकते हो। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो दिन वो आ रहा है ना वही दिन आपके बकरे को प्रॉब्लम हो। तो डॉक्टर आ रहा है वो तो अच्छी बात है, बट आपको खुद सीखना है। तो आप अभी, मेरे पास एक टाइम था, पीरियड था जहाँ पे हमको एक डॉक्टर यहाँ पे ही हमारे गांव में ही एक एनिमल शेल्टर है, वो डेली यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स है, तो हमारे यहाँ पे भी रोज़ चक्कर मारते थे जी। तो उनके थ्रू मैं खुद मेडिसिन मारना सीखा, मेडिसिन सीखा कैसा रहता है। तो वो एक चैलेंज है कि हाँ चलो ये एक स्टेप हो गया है कि कल को कभी डॉक्टर यहाँ पे नहीं रहे, हमको मेडिसिन मालूम है, कभी कोई सीरियस केस है जो हमको नहीं मालूम है तो डॉक्टर का कंसल्ट हम करते हैं। मतलब इट इज़ अ बेसिक थिंग कि आपको जो आप काम कर रहे हो ना, डॉक्टर का ज़रूरी है आपको। ऑब्वियसली डॉक्टर है, हम डॉक्टर नहीं है, बट आपको जानना जरूरी है कि हाँ भाई कौन से टाइम पे क्या दवाई दे सकते हैं, क्या देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, वो आना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अभी लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि ये एरिया में डॉक्टर आना बड़ा मुश्किल है, जी जी, तो बहुत से मेडिकल प्रॉब्लम हो गए जिसके बारे में आपको पता नहीं। कोई पलाई पे यहाँ पे बकरे रखता है, खुदा ना खास्ता उसके बकरे को प्रॉब्लम हो गई, जी जी, तो क्या अभी कैसे हमारे there is nothing they can do, फिर तो आप you just call them up saying there is no doctor available? No, it's not like that. I am telling कि डॉक्टर यहाँ पे रोज नहीं आ सकता, डॉक्टर को हमको नहीं, लेकिन अगर उनका बकरा जब बीमार हुआ, मेडिकल इमरजेंसी है, so what happens in that case? हम क्या करते हैं, पहले तो हमको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है ना, जी, तो हम डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, एक नहीं 3 जगह डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। हम पुणे में फ़ोन लगाएंगे, हम सतारा में फ़ोन लगाएंगे, हम बॉम्बे में परेल के हॉस्पिटल में फ़ोन लगाएंगे। वर्स्ट की सिनारियो हम क्या करते हैं, हमको मालूम है कि हाँ ये हमसे नहीं हो रहा है, हम डायरेक्ट हॉस्पिटल क्लिनिक लेके चले जाते हैं। ओके, हमारे पास नवी मुंबई पहुंच के, नवी मुंबई में एनिमल क्लिनिक्स अवेलेबल है, ठीक है, ठीक और वेटरनरी। सो बेसिकली आप हिलते हो, डॉक्टर हिले नहीं, आप हिल दो। हाँ, जाना ही पड़ता है। अभी मैं जैसे आपको बोला ना, एनिमल शेल्टर है नीचे, Fair enough. इमरजेंसी कैसा है, गांव के अंदर ही है, ठीक है, सब टाइप के एनिमल्स रखते हैं, मैं इधर से उठा के फटाफट उनके पास लेके चले जाऊंगा। ओसामा, इफ एनीथिंग हैपेंस टू अ गोट पलाई पे, जी खुदा ना खास्ता मोर्टेलिटी हो गई, जी आर यू ऑफरिंग एनी कॉम्पेंसेशन टू देम? नो, अभी तो मतलब वो एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग कमिटमेंट। अभी किसी को कुछ हो गया तो वो तो अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी मौत तो हमारे हाथ में नहीं है, जो सब बोलते हैं, तो दैट इज ट्रू कि हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम है मेहनत करना, और ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि नहीं भाई हमारे हाथ में नहीं है तो हम बीमार है तो दिखेंगे ही नहीं। बट बहुत से फार्मर लोग तो दे रहे हैं, सो व्हाई शुड अ कस्टमर नॉट प्रेफर देम एंड प्रेफर यू? बहुत से फार्मर दे रहे हैं, अभी बहुत से नहीं दे रहे एक्चुअली, जितना मेरे को मालूम है। अभी आपको शायद ज्यादा मालूम रहेगा। नहीं, तो बहुत से नहीं भी दे रहे, लेकिन कुछ फार्मर्स है जो दे भी रहे, तो किसी को वो छोड़ के यहाँ पर क्यों रखना चाहिए? कस्टमर को तो विन विन सिचुएशन इज फॉर देम ना। इट्स अ गुड पॉइंट, बट देन आई डोंट नो, मतलब आप आइए यहाँ पे, हमारा यूएसपी देख लीजिए, मतलब देख लीजिए। So basically you will not disappoint them. You're not promising anything, but you will not disappoint. No, it's obviously जब भी कोई कस्टमर का बकरे को कुछ होता है ना, तो सबसे ज़्यादा बुरा हमको लगता है, उनको भी बुरा लगता है ऑब्वियसली, उनका पैसा जा रहा है, बट हमको भी बुरा लगता है। वी ट्राई टू कंपनसेट देम इन सम वे, वी ट्राई टू, इफ इट इज पॉसिबल फॉर अस, वी कैन नॉट प्रॉमिस इट, बट वी ट्राई टू। ठीक है, ठीक, बट हम किसी को कुछ प्रॉमिस नहीं करते। ठीक है, नथिंग इन राइटिंग, बट नो प्रॉमिस मैं वापस बोल रहा हूँ, नहीं करते। हमारे इसमें रहेगा तो हम कुछ आपको ट्राई करके, बट यू विल नॉट गो डिसअपॉइंटेड इज व्हाट यू सेइंग। अभी बकरा मर गया तो भाई डिसअपॉइंट तो सामने वाला हो जाएगा। अब उसको समझो ना, अगर आप साल में 50 किलो भी बढ़ा दिए बकरे को, 50 किलो बढ़ा दिया और बकरा मर गया तो भी बंदा डिसअपॉइंट तो होएगा, बिल्कुल, क्योंकि उनको दिल पे लगेगा। नहीं, नॉट दैट डिसअपॉइंटमेंट, एकदम निराश होके नहीं जाएंगे कि भाई बहुत, यानी कुछ तो आप कॉम्पेंसेशन दोगे। वो हमारा नहीं, ऐसा नहीं, वो हमारा मेहनत देखेंगे। अभी जो सामने वाले जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो कस्टमर्स हैं ना, वो हमको ऑल द वे थ्रू सपोर्ट करते ही है। ठीक है, कभी कुछ होता है ना तो वो हमको स्ट्रेस में देख के बोलते हैं आप इतना टेंशन मत लो, आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, इंशाल्लाह दुआ करो सब सही हो जाएगा, वो हमको बोलते हैं हमको स्ट्रेस में देख के। ठीक है, चलिए, गॉट योर पॉइंट नाउ। ये बकरा है, इसका नाम है घोस्ट, 55 किलो का है जी। कितने दांत पे है ये? 4 या 6 दांत पे है। 37-38 हाइट होगी मेरे ख्याल से, 36-37 हाइट है। 36-37 ब्यूटीफुल फरी एग्रेसिव, एनीबडी वांट्स टू परचेज, कॉल कीजिए इनको, ठीक है, he'll probably consider selling it off। जी अभी तो मतलब इसमें क्या हो गया ना, हमने इसको काफ़ी महीना पाल लिया है, जो रेट में हमने खरीदा तो शायद हमको वो ना मिले,
तो वो नहीं मिलेगा, मतलब वही अभी देखते हैं इंशाल्लाह। इसका भी आप कॉल कीजिए। ठीक है ना, यू नॉट बी रिजिड विद द प्राइस, राइट, नो नो, ठीक है, यू विल बी फ्लेक्सिबल। या फेयर इनफ, ठीक है, चलिए विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ कोट्स। जी ओसामा भाई, आपके कस्टमर्स भी है यहाँ पे, दे सिटिंग बिसाइड्स मी, कैमरा शाय है सो सिर्फ उनकी आवाज़ आएगी जी। आप बताइए उनके बारे में, फिर देन विल स्पीक विद देम। ओके, सो जैसा ही मैंने वो लास्ट मालवा में बताया था, मतलब मालवा की वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि ये जो बकरा जिनका है मेरे फर्स्ट कस्टमर रहे, तो एक्चुअली वही कस्टमर है, अभी फार्म पे आ गए। तो ये बकरे भी उनके ही है, तीनों बकरे उनके ही है। सो एक वो सानेन है जी, दो सानेन है, ये सानेन है, और वो बकरी, अच्छा बोर अंडुल है, घसीटो मत घसीटो, हाँ आराम से ले। ठीक है, एंड दैट इज द अदर वन। जी ठीक है, और चलिए दो बकरे हैं, एक कवर कर लिया और एक हंसा का। चलिए कस्टमर से बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? शाहनवाज भाई, पहले ये बताइए बकरों के डिटेल्स बता दीजिए और बताइए बेचने के लिए है या नहीं? बेचने के लिए एक्चुअली शाहनवाज भाई ऊंचा बोलना पड़ेगा और इस तरफ देख के बात करना पड़ेगा, तो आवाज़ आएगी आपकी, ठीक है? ऊंचा। बेचने का एक्चुअली हम लोगों का कोई प्लान तो नहीं था, तीनों रखे हैं, पालने के लिए ही रखा गया था, शौक से ही तीनों रखे गए थे। बट ऐसा है कि कोई अगर कस्टमर है कोई, तो बेचने का इरादा नहीं था, लेकिन नाव अगर अच्छा रेट मिलेगा तो आप कर दोगे? अगर कोई कस्टमर रहेगा जो चीज़ समझेगा, जो चीज़ पहचानता है, अगर वो बोलता है कि उसको चाहिए, तो फिर अच्छे रेट में अगर हम लोगों का मुनासिब रेट आया तो हम लोग दे देंगे। चलिए बकरे के बारे में बताइए। लेट्स स्टार्ट विद द बोर। कितना प्योर है वो? बोर मस्ट बी अराउंड 95-100% साउथ अफ्रीकन इम्पोर्ट तो नहीं बोल सकते, स्टड क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। कहाँ से लिया आपने? ये हमने मेरे फ्रेंड से सोर्स किया था मैंने। हाँ, उससे अच्छे पैसे देके हमने लिए, पालने के लिए, शौक पूरा करने के कितने लिए। दांत पे है वो? अभी वो 9 मंथ्स है। 8 to 9 मंथ्स कितने किलो? अच्छा अभी तो अदंत है। हाँ, 8 to 9 मंथ्स 8 to 9 मंथ्स वही अदंत ही हुआ है ना? हाँ, और कितने किलो पे होगा? अराउंड 50 kgs वो है। नॉट बैड यार, 50 किलो अदंत है। 45 to 50 में होगा। लास्ट हमने जब वेट किया था तो उसका 46 वेट था। वो बेचने का इरादा है कि उसको पालना है? उसका भी अगर कोई कस्टमर रहा जो हमको ठीक लगे इसके अंदर तो कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ रहा तो ओसामा भाई को कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? अगर लेके यहाँ पे भी पलाई पे रखना है तो सिंपल। अभी हर वीडियो में हमारे बकरे में यही बोल दिया कि भाई कोई कस्टमर है अच्छा रेट देगा तो हमको दे दो, तो ये मत आप सोचना कि हम कंफ्यूज है कि बेचना है कि नहीं। द थिंग इज कि मेरे जो खुद के पर्सनल बकरे हैं थोड़ा सेंटिमेंटल वैल्यू रहता है बकरों के साथ, सो हमने खुद ही हमारे पेज पे ही प्रमोट नहीं किया सेलिंग के लिए उसको इतना। पर जैसा आप आए तो आपके थ्रू अगर कोई अच्छा रेट आ जावे तो बात बोलने का वो है, ऐसा नहीं कि हम कंफ्यूज है बेचना है नहीं बेचना है, ठीक है, आप वो मत सोचो। ठीक है। आप बताइए डिटेल्स बताइए सानेन की, ये वाला जो कैमरे पे वो उस बाजू जो है उसकी बाजू बताइए। ये सामान ये इंपोर्ट ब्लडलाइन सामान है। अच्छा। दिस इज वेरी प्योर, ओके, वेरी प्योर, एंड ये अभी 4 दांत पे है, एंड इट इज आल्सो अराउंड 60 kg।
ओके लास्ट मंथ हमने जब वेट किया था तो इसका 56 था, तो अभी दिस मंथ इट मस्ट बी अराउंड 60 kg। सिंग जबरदस्त है, सिंग बहुत सिंग बहुत अच्छी है, सिंग बहुत अच्छी है। उसकी जो विद है ये आपको नॉर्मल इंडियन सानियन में मिलेगी ही नहीं। ये इम्पोर्टेड ब्लड लाइन है, इनके जो हेयर्स होते हैं इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और ये लेंथ में बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल सिंग बोलते हैं जुड़ी भी रहती है, तो जी जी, सानियन में बोलते हैं कि जितना साथ में जा रही है उतना वैल्यू ज़्यादा है। बहुत अच्छा लग रहा है, वही वीडियोजेनिक है, फोटोजेनिक है। और आप इनका फेस भी देखोगे तो बिग फेस है। काफी अच्छे सानियन इनका, फर दिखाओ, फर देखेंगे ना, मतलब इतने फरी, अभी कोई लोग बोलेंगे भाई क्रॉस में है, बट ये जो चीज़ खरीद के आए इन्होंने क्या रेट में खरीदा है, किससे खरीदा है, ये पूरा इन्हें स्टडी करके खरीदा है। ठीक है, तो प्राइस की लेने का कांटेक्ट कीजिए। कितने दांत पे बताया आपने? ये अभी 4 दांत फ्रेश है। ओके, ये वाला भी सेम ब्लड लाइन। ये दोनों एक ही भाई है क्या? दे ऑलवेज टुगेदर एंड वेरी प्लेफुल है ना, बाजू में लड़ते नहीं है, आगे पीछे ही है। 4 दांत, ये भी 4 दांत? नहीं, ये अभी 2 दांत। 2 दांत अभी फ्रेश किया है इसने 4 और किया। कितने किलो पे होगा ये भी 50 to 60। दोनों 56 पे थे लास्ट मंथ, तो 50 to 60 के बीच में। ओके, बताइए। ये भी अगेन क्वालिटी 100% इम्पोर्टेड सानियन। आप इसकी भी सिंग के विद देखोगे, आप इसकी सिंग की साइज देखोगे तो ये आपको इंडियन मुझे सानियन में दोनों जबरदस्त लगे, लुक वाइज तो अलग ही है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। देखो सीना क्या बना है उसका, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी वो जो बोर भी उन्होंने बोला ना, वो स्टड लाइन में है। जी जी, वो जो बोर है ना, आप परसेंटेज में डाइल्यूट मत करो उसको। हाँ, परसेंटेज 100 हो गया मतलब प्योर हो गया, मैं वापस बता रहा हूँ 100% हो गया मतलब प्योर हो गया। प्योर के ऊपर आता है स्टड लाइन, तो वो स्टड लाइन का है, बट उसमें उसको ब्रीडिंग के लिए यूज नहीं किया है। हाँ, ओके, तो वो कैटेगरी का है। अभी आप समझिए, वो अदंत में है, आपको तो वीडियो में दांत दिखा दूंगा। उसका पोटा वोटा पूरा लटक गया है माशाल्लाह, जी, वो अदंत में है, अभी अराउंड 45 to 50 के बीच में है। दांत भी अभी इंशाल्लाह थोड़े महीनों में कर देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्वालिटी तो इनका प्राइस जानना है तो उसामा भाई को कांटेक्ट कीजिए। ये जो है सोच साच के और बता देंगे क्या बता दीजिए। अभी ये मुझे बताइए आप कि भाई कस्टमर के लिए पलाई पे रखते हो आप, जब क्या देखा आपने इस फार्म पर जो यहाँ पे रख दिया? क्लीनलीनेस रहते हैं। आप क्लीनलीनेस ढूंढने यहाँ तो इतना दूर तो नहीं आए होगे एक्चुअली हमारा उनसे पर्सनल रिलेशन भी है, तो मेन पर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छे हैं और वेरी ऑनेस्ट। अगर किसी वक्त ऐसा होता है कि अगर बकरा है, कभी वेट बढ़ता भी है, कभी नहीं भी बढ़ता किसी में ना, तो वेरी ऑनेस्ट ही ऑलवेज टेल्स मी कि ये महीना नहीं हुआ है, अभी आई एम वर्किंग ऑन इट, और उसका रिजल्ट मुझे मिलता ही है। और हमने सबसे पहले तो इनके पास हमारा जो फर्स्ट बकरा था, बट झूठ बोल भी कैसे सकता, आप तो यहीं पे हो ना, आप तो कभी भी आ सकते नहीं, हम मंथ में एक ही बार आते हैं, मंथ में एक ही बार आते हैं, और कभी ऐसा है कि जरूरत भी नहीं पड़ती है कि इनके ऊपर वी हैव टू कीप एन आई। ओके, ऐसा लगता है कि हमारे पास ही बकरा पल रहा है, शायद हमसे अच्छा पल रहा है ये, क्योंकि ये एनवायरनमेंट, ये फीडिंग सिस्टम ये हम लोग नहीं दे सकते, ये सफाई हम लोग नहीं दे सकते जहाँ हम रहते हैं। और हम लोगों का जो फर्स्ट मालवा है, जो फर्स्ट हम लोगों का जो हम लोग ने ग्रुप में एक ऐसी सडन देवनार चले गए थे। ग्रुप है नहीं, मतलब एक 3 फ्रेंड्स थे हम लोग, 3 फ्रेंड्स थे, तो सडनली हम लोग को ऐसा था कि हम लोग देवनार गए तो एक बकरा पसंद आ गया तो हमने ले लिया। तो इनके पास हमने रखा था वो मालवा, हमने इनको कुछ दिया था 40 kg, जो इससे पहले वाले पार्ट में था वो इनका। जो फर्स्ट बकरा आया था ना, ओके, अच्छा अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, इसमें वो मालवा था। वो 40 kg का हमने इनको दिया था, Okay. और 1.5 इयर्स में माशाल्लाह से वो 110 kg पे गया था। ओके, फेयर इनफ, सेल्फ फीडिंग पे। तो इसीलिए आपने रिजल्ट देखे यहाँ पे रिजल्ट, और अगर वेट ना भी मिले तो आई थिंक इनसे अच्छी केयर कोई नहीं कर सकता। That is the most important thing. अच्छा, यू ओसामा भाई, यू टेल अस व्हाट पीसेस ऑफ अ कस्टमर? पता नहीं यार, अभी कोई I'm sure, I mean, nobody is 100% satisfied, na? So you must have come across customers who have been absolutely miffed. So what makes? बहुत लोग का बहुत महीने का पैसा पेंडिंग हो जाता है ना, जी। हम मांगो तो उनको गुस्सा पूरा लग जाता है। अच्छा, so what pieces of is asking our own money? मजाक कर रहा हूँ, नहीं, आप दिल पे कोई मेरे पे भाई कुछ बोलो मत, मैं मजाक कर रहा हूँ। ओसामा भाई बोल बहुत देते हैं, फिर बाद में रियलाइज करते हैं नहीं भाई, बोला नहीं। आपके ऊपर हमारा धंधा चल रहा है भाई, हमसे गुस्सा मत हो जाइए। ओके, ऑफ तो पता नहीं, अभी वो हमको कभी ऐसा एग्रेशन सामने से दिखाया नहीं कोई कस्टमर ने। यू हैव वेरी स्लिपरी टंग, फिसल जाती है एंड देन यू रियलाइज अरे कहाँ पे फिसल गया। मैं तो सार्काज़म में बोल लेता हूँ, मतलब लोग दिल पे ले लेते हैं। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट सब। या मतलब मैं तो मजाक में बोल देता हूँ। तो अभी कैसा है ना, हमारे पास जो भी कस्टमर आए ना, हमसे कोई पिस ऑफ ऐसा कोई नहीं हुआ है। नहीं, व्हाट मिफ्स अ कस्टमर?
पता नहीं कभी कम्युनिकेशन में डिले हो जाए, ओके वीडियो टाइम पे कभी ना मिले, ओके तो वो हिसाब से हमने थोड़ा बेटर किया है। इनिशियली जब हम कर रहे थे तो मामा दुबई में थे, मैं अकेला था यहाँ पे, ओके ओके तो वो सो बेसिकली गुड कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, सो दैट इज व्हाट मिस ऑब्वियसली मतलब कम्युनिकेशन देना ही है। जैसा मैं आपको बोला मंथ के मैं 3rd 4th को या फर्स्ट वीक में ही वीडियो निकाल के वेट कैप भेज देता हूँ। फीमेल का वेट क्या नहीं समझ सकता है तो वो हिसाब से, बट देन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ हो गया बकरे को, मैं उनको नहीं बताऊँ, मरने के बाद बताऊँ तो ऑब्वियसली बुरा लग जाएगा, ऐसा नहीं करता हूँ। तो कम्युनिकेशन अगर हम अच्छा रखेंगे ना, उनको सब ऑनेस्टली सब बताएंगे, तो कस्टमर खुश ही रहता है भाई। ठीक है क्योंकि वो लोग भी शॉक कर रहे हैं भाई, तो सब खुशी रहता है, उनको सब मालूम रहेगा ना इन्फॉर्मेशन, क्या खा रहा है, आज बीमार है नहीं खा रहा है, डिवर्मिंग हो गया, वैक्सीन हो गया, जैसा भी है इन्फॉर्मेशन देते रहो तो खुश रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज देयर आर सम कस्टमर्स रिजल्ट ले देंगे तो नहीं, रिजल्ट नहीं देंगे, ऑब्वियस है वो तो, बट कभी कभी ऐसा लगता है दे वोक अप फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। नहीं ऐसा बराबर वैसा भी होता है। अभी कैसा होता है ना, हम जब भी बकरा नहीं बढ़ रहा है ना, हाँ तो हम ऐसा नहीं हम बोलते कि नहीं हम बढ़ाएंगे, हम बोलते हैं कि हम उनको पहले बोलते हैं हमसे नहीं बढ़ रहा है, अभी बहुत महीना हो गया ना, तो हम मेरे पास हुआ है कि मेरे से कोई बकरे लिए है तो मेरे को मालूम ही नहीं बढ़ने वाला है बकरा, तो उन्होंने कलर पैटर्न में देख के कस्टमर ने ले लिया, वो यहाँ पे आए भी नहीं देखने, बाहर से उन्होंने ले लिया, उनको सेंटिमेंटल वैल्यू था ऐसा, वो उनका पुराना बकरा वो कलर का था, उनको बोलते नहीं बढ़ेगा भाई ये। मैं बोला 2 महीना ट्राई कर लेता हूँ, 2 महीना रखा, नहीं हुआ तो मैंने उनको वही बकरा जो उन्होंने मेरे को दिया ना पैसा, वही रेट में बेच के उनको उनका पैसा मैंने दे दिया। ओके तो फाइन, मैं ट्राई करता हूँ कि कस्टमर भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूँ। ठीक है, चलिए फेयर इनफ, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोड। जी। थैंक यू सो मच उसामा भाई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ गोट्स, 2 बकरे निकाले हैं, वो बताइए सानिन जो है, हाउ डिफरेंट इज दैट सानिन फ्रॉम द वंस दैट वी सॉ बिफोर? ये जो सानिन है आपने जो पिछला देखा है, यहाँ है, ठीक है। तो ये जो सानिन है, आप एक्चुअली देखिए फर में बहुत क्वालिटी का फ़र्क है, साइज में, स्ट्रक्चर में बहुत क्वालिटी का फ़र्क है। ये जो एज में है वो उससे काफ़ी कम एज में, और इसकी सिंग खुली भी है और उन लोगों की काफ़ी, हाँ इसकी सिंग जॉइंट थी काफ़ी। सो प्योरिटी ज़्यादा किसकी है, उसकी है इसकी है? और दोनों का ब्रीड लाइन डिफरेंट है, ये इंडियन में ज़्यादा है, इसका जो फादर का लाइन है वो थाईलैंड का लाइन है जितना हमको सर्टिफिकेशन में दिया है, एंड वो टोटली इम्पोर्ट लाइन का है, जो आपको जो जिनका बकरा है वो आपको उस पर और बता देंगे। तो वो कैसा है ना, उसके बाल आप फर देखेंगे ना, वो क्वालिटी में काफ़ी बेटर है। वो एज में, ये एज में बहुत, वो बकरा ये एज तक आते आते भाई माशाल्लाह हो जाएगा। ये एक्चुअली सिंग खुली है तो ब्यूटी आती है, ब्यूटी ज़्यादा निखर के आती है। जी हालांकि सिंग उतनी मोटी नहीं है, बराबर फैला हुआ है, बट ब्यूटी बहुत अच्छी है इसमें। जी। ब्यूटी अच्छी है, doesn't mean that fur is everything. Without fur as well, the size of horns and the shape that the horns that they take, ट्रू, that है ना, defines the beauty. No, I'm just talking about the quality की, मतलब वो import quality का है, ये import quality का नहीं है, बस वही। ये बेचना है आपको? और नहीं, ये बेचना नहीं है। सानिन पालना how difficult it is? इनकी सिंग easy to अभी मेंटेन? क्या सिंग टूटी है कोई सानिन वानिन की? अभी अपने ये सानिन में आप देखेंगे सिंग टूटी नहीं है, बट घस पपड़ी जो है गई ना, आगे से ना, जो पपड़ी है ना वो लोग टूटते रहते हैं, जो मिडल से जो आप बोल रहे हो ना गैप है, हाँ तो वो जो है ना पपड़ी निकलते आती है। ओके। अभी इसको हम लोगों ने जैसा बोला, हम केज में ही बांध रहे थे, अभी तो कूटा लगा दिया है हमने, ऐसे बकरे लोग के लिए जिन लोग का सिंग बड़ा है, बट इनिशियली केज में ही था, तो लोग पपड़ी निकालते या फिर किसी को मार देना टक्कर, उसमें भी पपड़ी बचपन से ही थोड़ा थोड़ा करके, अब देखेंगे थोड़ा सा अंदर से वेवी है,
तो वो इशू है। बाकी आप पालने में कितना तकलीफ है आप बोलेंगे, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये वाला जो लाइन मेरे पास है इसका वेट गेन बहुत स्लो है भाई। अभी कितना किलो पे है? अभी अराउंड 60-65 kg पे और है। कितने महीने पहले आया था? काफ़ी टाइम हो गया इसको भी, 1.5 ईयर हो गया है, ज़्यादा हो गया है। 1.5 साल में इतना ही पहुंचा है 60 kg? अराउंड 30 kg पे आया था, 25-30 किलो, बट देन वही अच्छा मतलब 25 kg पे आया था? 25-30 तो किलो पे ठीक आया है, था, तभी आदन था। तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गया ना? ऑलमोस्ट डबल हो गया, बट मतलब कंपैरेटिवली बाकी Which isn't bad. या मतलब बाकी ब्रीड के कंपैरिजन में इन लोग के ऊपर मतलब वेट गेन उतना फास्ट नहीं है। बट देन जब ये लोग बड़े होते हैं तो भाई बहुत खूबसूरत लगते हैं। बट अभी भी खूबसूरत लग रहा It will है, take ऐसे time. कोई बोलेगा नहीं कमजोर है? नहीं खूबसूरत तो ऐसे नहीं जरूर कि है। पेट अंदर अंदर घुसा हुआ है नहीं, एकदम भी बिल्कुल अच्छा नहीं, बकरा है। सब फिट एंड फाइन है। कोई बुरा नहीं मेरा बोलेगा मतलब ये इसको। था कि हाँ। जब 80-90 पे इंशाल्लाह अगर जाए ना तो वो फ्रेम में जो उसका दिखता है ना भाई इस इनके साथ, वो चलने में भाई वो रुबाब लगा था। अभी भी माशाल्लाह बहुत प्यारा दिख रहा है। बहुत अच्छा है। अगर ये किसी को खरीदना होगा, वुड यू बी इंटरेस्टेड टू सेल इट? नहीं भाई फिलहाल तो नहीं सेल करना है। नहीं, बट कुर्बानी का इरादा नहीं है और ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। इवेंचुअली यू विल सेल इट ऑफ, राइट? इवेंचुअली विल सेल इट ऑफ। So तो why not आपको now? अगर चाहिए ना तो आप एक काम कर दीजिए, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट या बकरे का आप मेरे को बोल के सानेन आपका चाहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा क्या नाम सानेन है इस बकरे का? चिंगिस। चिंगेज। या चिंगेज नाम है, चिंगेज खान। चिंगिस खान या चिंगेज खान। कितने दांत पे वैसे ये? 6 दांत पे 6 दांत पे, ओके। जी। तो एक ये सानन है, ये भी आई गुड फार्म से है? आई गुड फार्म से आई गुड फार्म से जी, है, जी, तो जी। अच्छी ही क्वालिटी रहती है वहाँ पे। जी, मैं तो जी, जा जी। चुका हूँ वहाँ पे। अच्छी क्वालिटी रहती He's है। got इसलिए really मैंने बोला really कि good जो breeders. मेल है उनका हाँ। वो उनका एक ब्रांडिंग है मेल्स का। Absolutely. तो वो हिसाब से ये थाईलैंड का एक जो स्पेसिफिक मेल है उसका फादर मतलब वो है। I love the horns. Yeah, Absolutely stunning ओवर quality. टाइम आई विल ट्राई टू गिव यू अ क्लिप इफ यू कैन पुट इट Yeah. कितना हॉर्न्स था अभी कितना हो गया है। Definitely. कब तक के बढ़ते हैं इनके? कितने साल तक के बढ़ते हैं हॉर्न्स? भाई अभी इतना तो एक्सपर्टीज नहीं है क्योंकि मैं लाया था अभी 6 रात पे ही हुआ है। हाँ। 2 ही साल हुआ है तो अभी अभी बढ़ और ही बढ़ने रहे की हैं। गुंजाइश है? जी जरूर बढ़नी चाहिए और नहीं, क्योंकि मैं देखा था हॉर्न बढ़ते थे यहाँ पे एकदम पिंक पिंक आ जाता है ना सिंह के आ जाता है। शुरुआत but में, then तो अभी दिख भाई नहीं वो रहा है। बकरा ही बढ़ रहा है तो हॉर्न भी साथ में बढ़ना ही चाहिए। Let's see. मेरा जानना ये है। जैसे अभी भी आई थिंक इट्स नॉट स्मॉल, अच्छे खासे हॉर्न्स है, प्रीटी बिग या प्रीटी बिग एनीवेज भाई। ठीक है, वैसे कुछ आइडिया है कितने में बिक जाएगा अभी इस टाइम पर? ऐसा बकरा हम्म? भाई 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये तो लोग मांगेंगे क्योंकि नॉर्मली जो 25-30 किलो का बकरा है वही 30-40 हज़ार रुपये लोग मांग रहे हैं। सानेन का रेट वैसा हो गया है तो इसका तो क्वालिटी के हिसाब से जो वो बन गया है अभी ऑलरेडी, जैसे मैं बोला बनाने में मेहनत ज़्यादा है, जैसा बन गया है तो वो हिसाब से उतना रेट तो होना चाहिए मार्केट में। अभी मैं तो खरीदी और बिक्री इसमें ज़्यादा करता नहीं हूँ बट Okay. अंदाज़ा हो सकता है अपना। ठीक है, चलिए सालन हो गया। एक जी, ये जी। है चिंटू। जी बताइए इसके बारे में। बैंटम है राइट? जी बैंटम है। बैंटम है, बहुत फरी है, बहुत कम होते हैं ऐसे बैंटम। बहुत कम। अभी ये बकरे का मैं स्टोरी आपको बताता हूँ। इसमें कैसा था, बकरीद का टाइम चल रहा था, बैंटम हम ढूंढ रहे थे। हमारा प्लान था कि बैंटम की थोड़े फीमेल्स लेके आके ट्राई करते हैं कैसा वर्कआउट करता है। सो आई फाउंड दिस बैंटम कुर्ला में कहीं पे, तो उनका फार्म नहीं था, बस वो शौक से पाल रहे थे। उनको पालने नहीं हो रहा था केज में क्योंकि केज बार बार तोड़ रहा था वो भाई। अच्छा।
तो उनसे बात हुआ एंड देन मैं बकरीद में बिजी हो गया। 10-15 दिन चले गए। बकरीद के थोड़े दिन के बाद मैंने बोला कि चलो ये अवेलेबल है, प्राइस का बात हो गया था तो अवेलेबल है तो ले लेंगे। और हमारे नसीब में ही था भाई बकरा, मतलब अभी अपने नसीब में था। इतना टाइम होने के बाद भी मैं उनको फ़ोन किया, बोला अवेलेबल है, मैं अगले दिन जाके लेके आ गया। तो अभी ये भी कुर्बानी की नियत नहीं किया? नहीं, एक्चुअली ये जो बकरा है ना ये मेरे ब्रीडिंग के लिए बहुत काम में आता है। मैं ब्रीडिंग करता नहीं हूँ। बट आपके पास है ऐसे बैंटम बकरियाँ है मेरे पास। जो बर्बरी फीमेल्स है ना, मेरे पास बर्बरा का मेल नहीं है, बर्बरी का। तो इधर मैं सानिन ट्राई करता हूँ, मतलब जेनेटिक्स देखने के लिए ऐसा बच्चा आ रहा है। इंटरेस्टिंग ना, आई मीन क्रॉस करके देखो कैसे आपने किस को क्रॉस करके निकाला है? हमने उस्मानाबादी, हमारे पास इनिशियल फीमेल्स थी तो उस्मानाबादी में बोर ट्राई किया है, कोटा ट्राई किया है, फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच्चे हैं आपके पास जी, हम बता दो अलग अलग नस्ल के माँ बाप है एंड देन वी हैव अ किड, ऐसा अपने पास स्टॉक में रखा हुआ है? यस वी कैन ट्राई है ना? इन द नेक्स्ट वीडियो आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आई वांट टू सी व्हाट द रिजल्ट वुड बी लाइक। बर्बरी बैंटम का मैं आपको ट्राई करता हूँ, बोर और बर्बरी का मैं आपको बता देता हूँ कैसा है। सो हम इसमें कैसा है ना, जो हीट पे आती है ना बकरी, चेक करने के लिए बेसिकली हम लोग, हमारा फीमेल मिल्क शेड अलग है जी जी, तो ये बकरी को हम लोग फीमेल के शेड में बस लेके आते हैं। और भाई इसमें इतना पावर है, जो बकरी हीट पे पीछे भागेगा सीधा। बकरी खुद आती है मतलब बेसिकली, पर ये भी हमको आइडेंटिफाई करके दिखा देता है कि ये बकरी हीट पे है। ओके, तो मैं उसमें मेरा बहुत काम का है। ठीक है। और कितने दांत पे वैसी है? 8 दांत पे। 8 दांत पे है बकरा। बेचना 8 दांत मतलब दे दोगे जैसे मतलब पूरा कर लिया है, क्योंकि मेरे पास आ रहा तभी शायद 6 दांत पे था, तो काफ़ी टाइम हो गया है तो मैंने चेक नहीं किया, बट 8 दांत हो गया रहेगा। ओके, बेचना नहीं है। नहीं भाई, वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन है एक्सोटिक बकरी। बहुत। अभी ये जो बाल देख रहे हो ना, ये धोए हुए हैं बराबर। कितने मरतबा नहलाते हो आप बकरों को यहाँ पर? अभी ठंडी के हिसाब से भाई, अभी ऐसा अगर वेदर आज थोड़ा दोपहर में गर्म है, ठीक है, बट देन रोज गर्म नहीं होता है, रात को ठंडी होता है तो हमको वही हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। कोई बकरे को नहलाओ ना 1-1 महीने तक गंदे नहीं होंगे, कोई बकरे 2 दिन में गंदे हो जाएंगे जी। सो वी हैव टू मेंटेन कि भाई टेम्परेचर कैसा चल रहा है, वेदर क्या है, वही हिसाब से हम उनको वीकली 10 दिन में जैसा भी नहला देते हैं। नहलाते हो? जी, गंदे हो गए तो नहलाना पड़ता है। बैंटम का प्रॉब्लम क्या है, सो कोम करो, बार बार नहलाओ। अभी ये जो इनिशियली गंदा हो जाएगा ना डार्क, तो एक बार नहलाने में साफ नहीं होएगा, आपको उसको 3-4 बार हर रोज, थोड़ा 1 हफ्ते के बाद वो पूरा साफ होएगा। ओके। इसका नाम क्या है वैसे? इसका नाम रॉकेट, और उसका नाम था चिंगेज। जी। ठीक है। दोनों का अगर आपको प्राइस जानना है आप कॉल कीजिए। नहीं, बेचना नहीं है ये, इसमें तो मैं क्लियर हूँ कि फिलहाल अच्छा, दोनों नहीं सानिन एक्चुअली कभी ना कभी इवेंचुअली, बट आई डोंट थिंक सो कि ये मतलब एक अलग सा, मतलब ये खिलौना की तरह है भाई, मजा आता है। टॉय ब्रीड अभी साथ खेलते हैं ना तो बहुत मजा आता है भाई, आप देखेंगे ना हरकत इसके, क्यूट है। सो इट सानिन आपको मिल सकता है, ऐसा बैंटम मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसे बकरों की पलाई कितनी लेते हो आप बैंटम में? बेसिक भी रहेगा 2000 रुपये, 2000, क्योंकि इन दी एंड मेरा केज जा रहा है, मैं वही केज में बड़ा, मतलब बैंटम से बड़ा बकरा भी रख के भी 2000 रुपये ही लूंगा। एंड देन ऐसा नहीं कि छोटा है तो कम ही खाएगा, खाते हैं भाई अच्छा। ओके, ठीक है। चलिए, एनीवे वंस अगेन हम है मो फार्म्स पे। एग्जैक्टली कहाँ पर आता है ये? इट्स इन करनाला, पनवेल ऑन गोवा हाईवे। ऑन गोवा हाईवे। इट्स अराउंड 1.5 to 2 hours फ्रॉम मुंबई। एक रिकैप कर दीजिए, पलाई के चार्जेस क्या है? पलाई के चार्जेस आर 2000, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000, 40 kg के बिलो, 40 kg प्लस इज 2500। अंडुल खसी बोथ? खस्सी में थोड़ा कम है, ओके, सो मैं आपको बता दूंगा। एंड देन 65 kg के ऊपर 3000, एंड देन 90 kg के ऊपर 3500। ओके। और वैक्सीनेशन चार्ज है? नहीं, वो हम पूरा खुद ही बेयर करते हैं। अभी इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अभी कुछ बकरे का होता है बीमार या फिर उसका मेडिकेशन बहुत हैवी रहता है, कोई मेडिकेशन बहुत महंगा रहता है, सो वी ट्राई कि हम हमारी तरफ से ही कर दें, बट कभी कुछ ज़्यादा हो जाए तो हम, हो सकता है कि आपको बोलेंगे भाई वन टाइम हमको ये टेस्ट कराना है, सिर्फ CBC कराना है, क्या कराना है। मैंने कराया काफ़ी बकरे लोग का, पलाई के बकरों का भी कराया, पर मैंने उनसे मांगा नहीं हूँ। ओके, तो खुद के भी बकरा क्या होता है, हम खुद भी कर देते, कभी ज़रूरत पड़ा तो हम बोल सकते हैं। ठीक है। फिलहाल तो कुछ भी चार्ज नहीं है। 15-20 केजेस खाली है ना अपने पास? 15-20 केजी और कोटा भी खाली है। कोटा अभी जस्ट चालू कर रहे हैं, बकरे डाले नहीं है, आपको मैं डेमो दिखा दूंगा। ओके। और कुछ अभी स्कीम फिलहाल तो नहीं दे रहे हो, यू जस्ट शोइंग योर रिजल्ट? या स्कीम नहीं दे रहे। अगर आपका लॉट में काफी सारे बकरे हैं तो आई कैन गिव अ स्कीम की जिसमें आपको भी बेनिफिट हो, मेरे को भी बेनिफिट हो, क्योंकि इन दी एंड मेरे केस तो थोड़े ही खाली है, तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू फिल देम, बट ज़्यादा बकरे आ रहे तो मेरे को भी अच्छा एक ही बंदे से मेरे को बात करना रहेगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वंस अगेन आइए यहाँ पे, एनीबडी कैन वॉक इन। आप कॉल करके आ जाइए, क्योंकि कैसा है मेरे कस्टमर्स भी यहाँ पे हॉस्पिटल में रहते हैं, कभी मैं बिजी रहता हूँ, क्या है स्टाफ कोई काम में बिजी रहता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, आप कॉल कर दीजिए तो मैं आपको बता दूंगा कभी आप आ जाओ। आपका इंस्टाग्राम पेज क्या है? मो फार्म पनवेल। ओके, ठीक है।
क्योंकि हम और जाहिर सी बात है पलाई प्रमोट कर रहे हैं, दे वांट पलाई पे आए कस्टमर्स। तो ओसामा भाई हमें क्लाइंट से मिला रहे हो। ओसामा भाई किसे इंट्रोड्यूस करा रहे हो आप? जी दानियल भाई से। ये हमारे बहुत स्टार्टिंग के कस्टमर्स है, मतलब जैसा फार्म चालू हुआ जी जी। इनिशियली पलाई में जो वन ऑफ द फर्स्ट कस्टमर्स थे उनमें से ये एक है। ओके। इनिशियली ये फार्म पे स्टे करने आए थे एंड उनको बकरे का शौक था। तो Okay. वो हिसाब से उनको मालूम था यहाँ पे फार्म है हमारा, गोट फार्म, एंड स्टे भी है तो स्टे करने आए, देन जगह का स्काउट किए थे। ओके। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक दिए, थोड़े हमको राय दी है कि उनको क्या लगता है कि क्या बेटर हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, एंड फिर उन्होंने भी बकरे पलाई रख पे दिए। जी जी बकरे रख दिए। तो बात करते हैं दानियल भाई से। अस्सलाम वालेकुम दानियल भाई। दानियल भाई आपने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, अभी मुझे पता चला कि आपका था। क्या नाम था वो बकरे का? स्ट्राइकर। एंड दैट वाज एन एक्सोटिक सानिन। सानिन। और आप जो मेरी बिल्डिंग में वलीद भाई रहते हैं उनके हाँ उनसे काफ़ी सीखा उनसे है मैंने, काफ़ी और उनके साथ हमने काफ़ी सीखा है हमने उनसे। जी जी जी, ऊंचा बोलिए थोड़ा जी। दानियल भाई यहाँ पर आप रहते कहाँ हो वैसे? मिलत नगर अंधेरी। घर के पास ही रहते हो मेरे। इतना यहाँ पे रखना लाइक दिस इज अलग ही जगह आता है। एक होता है पडगा भिवंडी, लोग वहाँ पे ढाबे के लिए भी जाते हैं, एक रीज़न है ढाबे पे खाना खाने। एक फार्म पे जाएंगे तो 10 फार्म टूर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने रखने का क्यों सोचा और क्यों रखना चाहिए लोगों को? यहाँ पे एक्चुअली एनवायरनमेंट और एम्बियंस है, स्पेशली फॉर फीमेल्स आल्सो, बहुत अच्छा एम्बियंस है, और जो जगह है काफ़ी इनके पास ग्रेजिंग के लिए है जगह। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं आना चाहूँ तो अपनी फैमिली को भी ला सकता हूँ। यहाँ पे टेंट्स हैं, यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं, तो शौक भी हो जाएगा और फैमिली को भी साथ में वक्त मिल जाएगा, वीकेंड भी हो जाएगा। ओके ओके। तो आपके 3 बकरे हैं, एक बकरा 2 बकरी। जी जी जी। 2 बकरी है, ये बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह। हाँ ये काला हरी है, बहुत खूबसूरत है। इसका फादर जो है फुल ब्लड इंपोर्ट साउथ अफ्रीका में। ओके। एंड ये जो 2 फीमेल्स है, फर्स्ट जनरेशन फीमेल्स हैं। ये 2 फीमेल्स कल ही सोल्ड आउट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट जनरेशन फीमेल्स एज इन के इनकी जो मदर है वो निमकर लाइन की है। ओके। एंड द फादर इज फुल ब्लड अफ्रीकन इंपोर्ट। ओके। तो इट बोर में गोट की प्योर लाइन का बोर है, and then after pure it goes to first generation, then second generation that is called premium stud. The first generation is called stud, then premium stud, then full blood. ये जो फुल ब्लड हाफ ब्लड है, मैं हैरी पॉटर में पहले सुना था। या बोर में नॉर्मली बोर में भी होता है। या ने पहले से ही एक्चुअली जो फुल 100% बोर फार्म है उनका जेनेटिक्स वो वैसे ही मेंटेन करते So this is 100% pure? हैं। प्योर मतलब 100% जब भी हो गया ना, मतलब वो प्योर हो गया। ओके। 100% के ऊपर दैट इज स्टड। सेमी स्टड भी आता है, बट देन टू सिंप्लीफाइड इट्स प्योर स्टड, प्रीमियम स्टड एंड देन फुल ब्लड। ओके। कब रखे थे आपने ये अराउंड 2 महीने हो गए इसको यहाँ पे। कितने किलो पे आया था, कितने किलो पे है? ये अभी समझ लीजिए ये अप्रॉक्स 55 पे आया था ये, और 60 हो गया रहेगा ये अभी। Okay. हाँ कितने पे आया था? 55 है। सो ओसामा भाई जी जी। in 2 months just 5 kgs up. Boar is a breed which is supposed to gain a lot of weight. नहीं, अभी मैं आपको इसमें एक चीज़ जी, बताता जी। हूँ। बोर में अभी कैसा है मेरा एक्सपीरियंस, मैंने बोर पाला हो, खुद के भी पाला हो, दूसरे के भी आए हैं। तो बोर में जब भी पर्टिकुलरली बोर के फार्म से आता है ना, स्पेशलाइज इन बोर, हाँ, तो उसमें कैसा रहता है, वो लोग का फीड बहुत साइंटिफिक होता है। पेलेट्स होता है, ग्रीन फॉडर होता है, ड्राई फॉडर होता है, सब मिक्स होता है बराबर। तो जब भी हम वो जगह से हमारे जगह पे लाते हैं ना फीड, हम लोग वो पेलेट्स वगैरह अवेलेबिलिटी का बहुत इशू रहता है, कॉस्टिंग का बहुत इशू रहता है। हम वैसा उनको फीड दे नहीं सकते या अवेलेबल नहीं होता है। और हमारा हरी पत्ती रहता है, तुअर का भूसा रहता है, बाकी सब चीज़ें रहती है, तो उसमें सेट होने काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी एक बार सेट हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोर भाई बहुत अच्छा बढ़ता है। ये अभी भी 2 दांत फ्रेश है ये। तो 2 दांत में 60 kg इज प्रीटी गुड। अभी 5 महीना 5.5 महीना बाकी है ईद में, कुर्बानी के लिए ये नहीं इसको सेल आउट करेंगे। सेल आउट करना है। अभी इस वीडियो में प्राइस बता सकते हो इसका कितना मांग रहे हो? प्राइस नहीं, you can they can DM। But why do you guys shy away from telling the price? Is it like नहीं, see there if anyone आप wants to sell no afterwards। आपने मुझे ऑफलाइन बोला था कि भाई कुछ बोर है जो 400 रुपए किलो भी बेचते हैं, 500 रुपए भी, और कुछ है जो बहुत लाखों में बिकते हैं। Actually जो कदरदान है वो लेगा इसकी आप लाखों क्वालिटी का। देखेंगे सो तो व्हाई यू शाइंग अवे? नो, एक्चुअली इसकी हाँ, क्वालिटी जो है, इसकी बोन साइज और जी इसका झालर देखेंगे तो, और इसका जो कैपेसिटी है आगे बढ़ने की, तो ये बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी है। नो डाउट। सो हाउ मच आर यू आस्किंग? No, actually that I'll say in the DM, because if anyone wants to sell it after buying, Actually ऐसा है ना, But what if somebody wants to use it for breeding purpose? yeah, they can They definitely। don't give a hoot if you disclose the price or not.
तो what do you do in that एक्चुअली case? वन ऑफ द रीजंस माइट बी, ठीक है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो एक फार्म चला रहा हूँ, बट कैसा है ना भाई, अभी बोर का प्राइस आपको ही मालूम है मार्केट में कैसा चलता है। आप लेने जाओ 20,000 में मिलेगा, आप लेने जाओ 5 लाख में भी मिलेगा, बट प्राइस बोल दो ना तो कमेंट लोग गंदा गंदा कर देते हैं भाई, अपना बकरा है नहीं, कस्टमर का चलो चलो कोई नहीं, बट दिस इज प्रीमियम, ये दिस विल कमांड अ प्रीमियम प्राइस। ओके ओके, तो बकरा बकरी सब बेचना है आपको? बकरियाँ तो कल ही बिक गई अलहमदुलिल्लाह। बकरियाँ बिक गई आपकी? पुणे में बिक गई है। ओके, ऑन एन एवरेज ऐसी बकरी ये अच्छी ब्लड लाइन वाली हाँ, है, this is तो first generation. कितने की आ जाती है ये? It depends upon quality and depends upon the seller as well. ओके, हाँ, तो ये अप्रॉक्स 70 से स्टार्ट होती हैं, बट 3 to 4 months of age 70,000 से शुरू होती है? It can go up to, the full blood goes up to lakhs, 10 lakhs, 11 lakhs, more than that, जैसे depending on the quality. बर्बरी and the जो genetic. होते हैं, मैंने सुना वो साल में 2 मरतबा बच्चे देते हैं, इनका क्या है, साल में एक ही बार देते हैं? साइकिल रहता है 8 मंथ्स का साइकिल आप पकड़ सकते हो, तो एक मैक्सिमम, ही हाँ मैक्सिमम 8 मंथ्स का, इट्स बेसिकली 2 साल में 3 बार आप पकड़ो, 2 साल में 3 बार, मैक्सिमम बकरी लोग का वैसे ही होता है। ठीक है। एंड जो ये बोल रहे हैं ना रेट, आप जो बोल रहे हो इतना हाई की, आप प्योर लाइन जब भी 100% नहीं, मुझे तो रेट पता ही नहीं अभी इसका। अच्छा, ये 70,000, अच्छा इसका नहीं, बेसिकली जो प्योर लाइन में है, जो लोग को नहीं मालूम है, जितना मेरे को मालूम है मैं बताना चाहता हूँ, प्योर लाइन देंगे ना तो अराउंड 1,000-1,500 रुपीज़ से लेके 2,000 रुपीज़ के जी फीमेल का रहता है। जी जी, उसके ऊपर आप फर्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो 2,000-2,500 तक जाएगा, 3,000 तक जाएगा, उसके ऊपर वो वैसा बढ़ते रहता है। मेल का रेट हमेशा बोर में कम रहता है। ओके ओके। फीमेल इज मोर एक्सपेंसिव। दानियल भाई, मैंने देखा हूँ, अभी मुझे पता नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों के मैंने बोर बड़े बकरे बेचने के लिए बनाया, बिक तो गए, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सेल एल्डर गोट्स, बक्स, लेकिन जो बच्चे हैं फट से बिक जाते हैं। हाँ, बट इफ यू हैव क्वालिटी देन यू कैन एक्सपेक्ट इट बेटर देन द अदर बोर। ओके ओके, ठीक है, तो मैं आप ही का नंबर डालता हूँ, व्हाट इफ समबडी वांट्स टू बाय इट एंड कीप इट ऑन पलाई हियर ओनली, है ना? तो आपका नंबर डाल दूंगा स्क्रीन पर, इन्हीं का नंबर है ओसामा भाई का, यू कैन गेट इन टच विद ओसामा भाई। ऑल्टरनेट नंबर 2 नंबर दे देंगे, I'll put it on the screen, it will flash on the screen, आप कॉल कीजिए। बट इतनी फटाफट आप ट्रेडर हो? नहीं, ट्रेडर नहीं है, जैसे कि आई एम गोइंग टू बाय अ फुल ब्लड आल्सो वेरी सून, सो आई एम जस्ट शिफ्टिंग टू अ न्यू लेवल। तो यहाँ रखोगे क्या? हाँ, रखेंगे, बिल्कुल You just want to get rid of the farm and go away? No. ऐसे नहीं है ना? Actually, the experience with the females is very wonderful because they came 4 months ago. Okay. And इनका जो ग्रोथ है और जो जिस तरीके से यहाँ पे सेट हो गए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को इजीली कोई ऐसी जगह मिलेगी। Daniel bhai, nobody is perfect, I understand. What is the feedback that you would like to give these guys? Yes, it's quite wonderful and people should come and try this once. Okay. Because ये एटमॉस्फेयर और एम्बियंस और इतनी बड़ी जगह आपको जल्दी मिलेगी नहीं फार्म पे, और दैट टू सो मच क्लोज टू मुंबई। ठीक है, बकरी का कितना है चार्ज पलाई का? बकरियों का 1750। 1750 और बकरियों का हम लोग थोड़ा लिमिट कर रहे हैं। ओके। सो आप मतलब अगर क्वांटिटी में है या फिर कोई क्लोज है तो हम लोग वैसा ही, क्वांटिटी में है या फिर क्लोज है तो हम वैसा ही ट्राई करने के लिए, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, बकरी का कितना है? बकरी का स्टार्ट्स फ्रॉम 2000, दैट इज 40 kg के बिलो इज 2000 इसका कितना रुपीज। ले रहे हो आप? 60 किलो का? इसका मैं ले रहा हूँ फिलहाल 2500। 2500 जी, सो 40 kg के बिलो इज 2000, 40 प्लस इज 2500, 65 प्लस इज 3000 एंड 90 प्लस इज 3500। ठीक है, मैं दूसरे फार्म्स पे जाता हूँ, दे हैव एवरी डॉक्यूमेंट, कितने किलो पे आया था, दे हैव अ वीडियो, दे हैव कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दैट्स मोर प्रोफेशनल अप्रोच। डू यू हैव दैट, और ये सब हमारे वर्बल पास होता जो है? कैसा है ना, हमारा एक साइकिल है वेट का, हम लोग 2nd या 3rd ऑफ एवरी मंथ हम वेट करते हैं। वही वीक में 2nd, 3rd या 4th को हम कस्टमर को वीडियो भेज जब देते हैं हमारे कस्टमर, पास। नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट, जब जब ये कस्टमर आता है। आके रखता है, डू यू हैव अ फॉर्म, अ टर्म्स Form एंड नहीं है। कंडीशन एंड एग्रीमेंट, कुछ नहीं है? नहीं, वैसा कुछ So नहीं। everything is verbal. इट्स वर्बल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कस्टमर्स भी काफ़ी अच्छे मिले, तो मतलब वैसा एक्चुअली कभी इशू नहीं हुआ। बनाना है हमको, हमारा अभी चालू है, स्लोली सब चीज़ में आएंगे, बट देन करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे जल्दी। अगर कोई कस्टमर पलाई नहीं देता, व्हाट डू यू डू इन दैट केस? होता है 3 महीने तक के किसी ने नहीं दिया तो? 3 महीना फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं, 8 महीना, 10 महीना, 10 बकरे साथ में 10 महीने के लिए नहीं दिए तो दैट इज द भाई- एडवांटेज ऑफ बीइंग रिच, है ना? नहीं नए सर, farmers। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है, 10 बकरे रख के, 5 बकरे रख के अगर जी, आप जी। साल नहीं दोगे ना तो हम बकरा वापस आपको दे नहीं पाएंगे। ओके, तो वो हम जिसको बोल देते हैं कि भाई आप थोड़ा करके दो। सो वही मैं बोल रहा हूँ, डोंट यू थिंक प्रोफेशनल अप्रोच रखना बेटर है? हैव एवरीथिंग इन राइटिंग ना व्हेन द गोट कम्स, व्हाई डोंट यू डू दैट? और करना है, वही इसलिए करना है है ना? क्योंकि एक्सपीरियंस हुआ है।
करते करते मतलब सीखते हैं, अभी हम भी कर ही रहे, ऐसा नहीं कि 10-15 साल हो गए, बस 2 साल ही हुआ है। दिस इज ऑलवेज लर्निंग कर्व है ना, आप सीखोगे। दानियल भाई फीडबैक क्या देना चाहते हो, यानी कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए? नहीं, जैसे आपने एक पॉइंट बोले टर्म्स एंड कंडीशन पे, इट्स शुड बी ऑन वाइट एंड ब्लैक पेपर पे होना चाहिए, तो वो है। और बाकी तो धीरे धीरे सीख के वो खुद ही सीख जाएंगे, ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं मेरा है, feedback आपने दे दिया। आपका फीडबैक क्या है? नहीं, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था, मैंने जैसा बोला आपको। सारा बढ़िया। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके चलिए, वंस अगेन जिस किसी को भी लेना है उसामा भाई को कॉल कीजिए, हाँ, उसामा ठीक भाई है। को call कर एंड वी होप टू सी यू अगेन विद न्यू गोट द नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम, ईद के टाइम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है। जोगेश्वरी में रहते हो ना आप, मिलत नगर में, ठीक है। सी यू अराउंड, थैंक यू सो मच। चलिए, बिफोर वी एंड द वीडियो, क्लोजिंग गोट जी, पकड़िए, इसको पकड़िए, एकदम पकड़िए, ठीक है। हंसा है, क्या है? हंसा है, हंसा बकरा है, अदंत है, अच्छी फ्रेम का है। जी जी, और पलाई पे ही है। यही पलाई। इसका कितना लेते हो आप? इसका फिलहाल तो मैं 2,500 रुपये ले रहा हूँ। 2,500। किसका है ये? नहीं सॉरी, 2,000 रुपये ले रहा हूँ, इसका बढ़ेगा अभी 2,500। 2,000, ओके। जी जी, किसका है बकरा? वही जो पहले मैं बताया, जिनका बकरा है 4 साउथ बॉम्बे वाले? जी जी, ओके, ठीक है। वंस अगेन जिस किसी को भी आना है, आर यू लिस्टेड ऑन गूगल मैप्स? जी मैं लोकेशन भेज दूंगा आपको। मो नहीं, फार्म्स करके मो है। फार्म्स गूगल मैप्स पे है? हाँ है ना, है, ठीक है। एक्चुअली मो फार्म्स का 2 लोकेशन है, एक रॉन्ग लोकेशन है, तो आप सो यू कैन ऑलवेज एडिट ऑनलाइन, जाके आप एडिट कर सकते हो। डू इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। ठीक है। आई कैन गेट इट। व्हाट आर योर नंबर्स टू गेट इन टच विद? 7977158431। आई विल रिपीट, 7977158431। इन केस मैं आपका फ़ोन नहीं उठाता हूँ, पॉसिबिलिटी है मैं काम में बिजी रहता हूँ, दूसरा काम भी रहता है, टाइम मैच नहीं होता है, नेटवर्क नहीं रहता है फार्म पे कभी कभी, आप व्हाट्सअप कर दीजिए। बार बार कॉल मत करो, व्हाट्सअप करो, क्योंकि अननोन नंबर में कभी कभी कॉल बैक नहीं कर पाता हूँ, तो उसमें मिस आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही नंबर डालता हूँ, सो इट्स इजियर टू कम्युनिकेट। ठीक है, जैसा भी है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।